Hello students, today we will be starting with the chapter vectors and we will be revising the major concepts that are asked in your IIT exam. Clear? और जहाँ तक जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो बेटा वेक्टर्स चैप्टर आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में से वेक्टर और 3D में से कम 2 क्वेश्चंस जेईई मेंस के पेपर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आएंगे ही आएंगे. इनफैक्ट ये चैप्टर जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेटा. वी विल बी स्टार्टिंग विद द क्विक डेफिनेशंस दैट वी विल बी getting under the questions when we encounter the chapter vectors, right? So the definition of a vector first. What is a vector? You know that it is a quantity which has a fixed magnitude and a fixed direction, or you can also say a line segment which is directed. A directed line segment is called a vector. Now line segment जब हम बोलते हैं, when we say a line segment, so line segment means fixed magnitude का जो है एक पोर्शन, एक पार्ट हमने लाइन में से कट कर लिया. एंड अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट मींस वी हैव बीन गिवन द डायरेक्शन टू दैट लाइन सेगमेंट. हम उस लाइन सेगमेंट को एक डायरेक्शन दे देते हैं. दैट इज व्हाट अ वेक्टर इज कॉल्ड. क्लियर? सो हैविंग फिक्स्ड मैग्नीट्यूड एंड अ फिक्स्ड डायरेक्शन, सच अ क्वांटिटी इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, बाकी फिजिक्स में आपने पढ़ा ही होगा. सो मेनी थिंग्स लाइक वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, राइट? ऑल दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज. ओके, नाउ नेक्स्ट कम टू अच्छा हाँ, वेक्टर जब हम बनाते हैं एक पॉइंट से 2 पॉइंट पर एरो शो करना जरूरी है बिकॉज इट शोज द डायरेक्शन. सो जहां पॉइंट से ओरिजिनेट होता है, दिस इज कॉल्ड द इनिशियल पॉइंट. दिस पॉइंट इज कॉल्ड द इनिशियल पॉइंट. और जिस पॉइंट पे टर्मिनेट होता है दैट पॉइंट इज कॉल्ड द फाइनल पॉइंट एंड इट इज रिटन एज ए बी और ऊपर वेक्टर साइन बना देते हैं. आई होप ये सब आपको पता ही होगा. एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, the magnitude of a vector is the length of that line segment or the length of that vector. So the length of AB vector is denoted as magnitude का symbol. दो parallel lines के बीच में AB vector लिख देते हैं which denotes the magnitude. We also say mod AB. It's exactly not the modulus function which we have studied in algebra. That modulus is for making any quantity, any expression positive. It doesn't return the negative value. Here modulus of vector represents the length of that vector. Okay, now next definition, next type of a vector is a unit vector, and a unit vector is denoted as it is called cap. A के ऊपर ऐसे cap लिख देते हैं. So cap, what does the meaning of a unit vector? नाम से समझेंगे. A vector having length unity. Unity means one unit का, वन लेंथ का जो वेक्टर बनेगा, दैट इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर. अ वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन एज ऑफ गिवन वेक्टर. कोई भी गिवन वेक्टर है उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी बट उसकी लेंथ 1 हो जानी चाहिए. एंड हाउ डू वी रिप्रेजेंट अ यूनिट वेक्टर? वी रिप्रेजेंट अ यूनिट वेक्टर, लेट्स से दिस इज अ वेक्टर ऑफ सम फिक्स्ड मैग्नीट्यूड. इसे यूनिट वेक्टर बनाना है तो आपको उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा. Whenever a vector is divided by its magnitude, such a vector is called a unit vector. It is called AB. It is represented as AB cap, right? So the next type of vector is called a null vector or a zero vector. Now as the name suggests, null or zero, that means a vector having zero magnitude and no direction. It doesn't have any magnitude, it doesn't have any direction. Such a vector is called a null or a zero vector. And you can represent it by O like this also, O vector, or it has no magnitude and no direction. Also you can say that it can be represented as A vector. Now A vector means जिस point से start किया उसी point पे terminate किया. It has the same initial and the same final point. Same initial and same final point. So such a vector is called a zero or a null vector. Okay. Now next type of vectors, equal vectors. Now equal vectors is a comparison between the two vectors. So two vectors are said to be equal if they have the same magnitude and the same direction. ध्यान रखिए दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए, उनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए. देन ओनली वी से दैट द two given vectors are equal vectors, right? Now we come to the next definition which is called collinear vectors and it is very much important. इसको हमें ध्यान से समझना है बेटा. What is the definition of collinear vectors? Two vectors are said to be collinear if their directed line segments are parallel.
दो वेक्टर्स को बेटा कोलिनियर तब कहते हैं जब उनकी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स, मीनिंग लाइन सेगमेंट्स हैं, उनको डायरेक्शन दे दी, आफ्टर गिविंग द डायरेक्शन वो जो लाइन सेगमेंट्स हैं वो पैरेलल होनी चाहिए आपस में. See, I have shown you some of the vectors. Let's say this is a vector A, initial and final point. This is vector B. Their magnitudes I have considered different. This is A vector, this is B vector, this is C vector. All these vectors की the line segments जो हैं, the line segments are parallel. If the line segments of the vectors are parallel, then they are called collinear vectors. Okay, they are called collinear vectors. Their directions can be opposite also. So based on this, कि डायरेक्शन सेम है कि ऑपोजिट है. यू कैन सी दैट हियर ए वेक्टर एंड सी वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड बी एंड सी आर आल्सो इन ऑपोजिट डायरेक्शन. सो दे हैव बीन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. वन इज कॉल्ड लाइक पैरेलल वेक्टर्स एंड वन इज कॉल्ड अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स. नाम पैरेलल ही है. कोलिनियर वेक्टर्स कैन आल्सो बी कॉल्ड एज पैरेलल वेक्टर्स. They can also be called as parallel vectors. Okay, now like parallel and unlike parallel. What is the meaning of like parallel? Like parallel are the vectors which are in the same direction. जैसे इसमें A और C हो गया, तो बेटा अगर अपन को like parallel vectors को express करना है, so they can be written as A vector is equals to lambda times of C vector. है ना, ध्यान रखना बेटा इस चीज का, जहां lambda belongs to positive real values. Now why positive? Because their direction are same. If the direction of vectors are opposite, तो उनका जो साइन होता है ना वो साइन चेंज हो जाता है, प्लस से माइनस. जैसे फिजिक्स में पढ़ा होगा, इफ वी टेक अ velocity in a particular direction positive, then its opposite direction the velocity becomes negative, right? It is considered in that way because it's a vector quantity. That is what we are saying. So हम like collinear vectors basically वो vectors होते हैं जो parallel होते हैं, और हम अगर पैरेलल वेक्टर्स होंगे तो हम उनको एक दूसरे की टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाएंगे. हम ए को बी की टर्म्स में या ए को सी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. पर अगर डायरेक्शन सेम है तो अगर आपने अच्छा कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, विद सम बेसिकली डायरेक्शन तो सेम है, उनका कुछ मैग्नीट्यूड का फर्क है. सो व्हाट डज लैम्डा हेल्प्स अस इन डूइंग? लैम्डा हेल्प्स अस इन एडजस्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स. So lambda will be here positive real. Why positive real? Because I don't want to change its direction. And unlike parallel which are in opposite direction, let's say A and B हम ले लेते हैं, so you can write A vector in terms of B as let's say mu B vector, but here mu will be negative real values. Mu will be negative real because हमें उसका direction change करना था, magnitude change है और direction opposite करना था, तो negative sign से change होना चाहिए था. Clear? So collinear vectors are also called linearly dependent vectors. Collinear vectors को क्या कहते हैं? Linearly dependent. A linearly depends on C, A linearly depends on B, है ना? That means one vector can be expressed in terms of another vector. Linearly dependent vectors can be expressed in terms of each other. Very important point. I have shown you how to represent one vector in terms of another if they are, but this can be done only if they are parallel. Now parallel का ये मतलब नहीं direction same. Parallel में same direction और opposite direction दोनों consider करे जाते हैं. Clear है? अच्छा, अब वेक्टर्स जिनको हम एक दूसरे की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बेसिकली विच आर नॉट पैरेलल वेक्टर्स. वन वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन एंड वन इज इन अनदर डायरेक्शन. दे आर नॉट, देयर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स आर नॉट पैरेलल. ओके, सो सच अ वेक्टर्स they are called linearly independent or base vectors. एक और टर्म आता है बेटा base vectors. So vectors which cannot be expressed in terms of each other. बहुत सिंपल सा एग्जांपल, i cap, j cap, k cap. I cap is a unit vector in the direction of positive x-axis. I hope you know the system of orthogonal triads. What are orthogonal triads? Orthogonal triads, I cap, j cap, k cap. Triads. Orthogonal means perpendicular. Triads मतलब three triplets you can say. So I cap, j cap and k cap, right? I cap is the unit vector, that is vector of magnitude 1 in the direction of positive x-axis. J cap unit vector in the direction of positive y-axis, and k cap direction in the unit vector in the direction of positive z-axis. Now x-axis, y-axis and z-axis, they are obtained by the you can say cross product rule. Cross product कैसे करते हैं? I cap x, let's say you can say that, let's say this is x-axis, this is y-axis, पॉजिटिव x एंड पॉजिटिव y. सो x से y की डायरेक्शन में अगर आप क्रॉस करो, फिंगर्स को क्रॉस करोगे, रोटेट करोगे, तो द डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव यू द पॉजिटिव z एक्सिस.
So I cap, J cap, K cap, these are called orthogonal triads, है ना. अब हम आगे और उसको बारे में पढ़ेंगे, but मुझे मेरे हिसाब से आपको ये पता रहना चाहिए, तो इसलिए मैंने बता दिया. So I cap, J cap, they are लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स. हम आई कैप को जे कैप की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते बेटा, है ना. हम जे कैप को के कैप की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते बिकॉज दे आर नॉट पैरेलल वेक्टर्स. सो लेट्स से आई हैव गिवन यू एन एग्जांपल. लेट्स से इफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इज 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप. सो ऐसा होता है तो बेटा हम डायरेक्टली से दैट एक्स इज 2 एंड वाई इज 3 एंड वाई इज सच दैट let's say if I take, ये तो मैं ऐसे समझाने के लिए कर रहा हूँ, you can directly say x is 2 and y is 3. x cannot be 3 and y cannot be 2. It's not possible because you cannot express I in terms of j. I and j mix होकर एक दूसरे की टर्म्स में नहीं लिखे जा सकते. So if we take everything on the one side, it becomes x minus 2 i cap plus y minus 3 j cap equals to 0. Now here I cap and j cap are represented in the they are represented in the linear form of each other like this. A equals to lambda c. What is written? I cap equals to, if you take this term on the other side and divide by x minus 2, so I cap becomes y minus 3 upon x minus 2 j cap. I cap is a vector, j cap is a vector, and y minus 3 upon x minus 2 is some linearly some constant quantity, let's say lambda. So I cap is lambda times j cap. और अगर ऐसा हुआ lambda की वैल्यू 0 नहीं हुई बेटा, so that means आपने I cap को j cap की टर्म्स में लिख दिया, which is not possible. तो इसको अगर जीरो वेक्टर के बराबर होना है तो वन एंड ओनली वन केस इज पॉसिबल दैट आई कैप एंड जे कैप के बोथ कोफिशिएंट शुड बी जीरो. सो दैट्स व्हाई वी गेट द वैल्यू ऑफ x is 2 and y is 3. दिस इज बिकॉज आई कैप जे कैप आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स. गेटिंग द पॉइंट? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कोलिनियर और यू कैन से लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, राइट? नाउ next type of vectors that we'll study is again very important, which is called position vectors. Now what is a position vector? इन अ स्पेस. अच्छा, अब स्पेस जो है बेटा हम 3D डायग्राम जो है वो मान के चलते हैं ना. टोटल वी एज्यूम अ 3D फिगर, ऑर्थोगोनल ट्राइड जैसे हम कहते हैं. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ पोजीशन वेक्टर? लेट्स से इन अ ऑर्थोगोनल ट्राइड एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस जहां तीनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन. एंड देन देयर इज एनी पॉइंट इन द स्पेस, लेट्स से ए पॉइंट. सो इफ यू जॉइन O, दैट इज ओरिजिन, विद दैट पॉइंट A, सो OA वेक्टर is called the position vector of that point. For the position vector of any point, you have to join that point with origin. So that vector starting from O, initial point, and terminating at that point, initial से final point, OA vector is called the position vector of point A. You can write it as like A vector also. And similarly, this is the B vector, position vector of B point. Now, if you have to represent AB vector, if you have to represent AB vector, so it is written as position vector of B minus position vector of A. That is OB vector minus OA vector. Final minus initial करके हमेशा लिखा जाता है. Final point minus initial point का position vector. Clear है? This is how we define a position vector. हमेशा point को origin से join करके vector लिखा जाता है. Right? अच्छा. Next, I have also written a parallelogram law of vector addition. ये भी आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा. What happens in this is ओरिजिन से A को ज्वाइन किया, दैट इज A वेक्टर. ओरिजिन से B को ज्वाइन किया, दैट इज B वेक्टर. एंड आई हैव कंप्लीटेड द पैरेललोग्राम. दैट मींस दिस इज नथिंग बट A वेक्टर एंड दिस इज नथिंग बट B वेक्टर. पैरेलल टू दिस एंड दिस इज A वेक्टर, सो दिस इज A वेक्टर आल्सो ओनली. ठीक है. सो द डायगोनल OC वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ OA एंड AC. So we write the vector C as A plus B. And the another diagonal BA vector, it will become final minus initial A minus B vector. This is how the diagonals of a parallelogram can be written. अगर उसको origin से हमने position vectors की form में लिखना है तो. Clear है बेटा? चलिए बेटा. Now after collinear vectors, the next thing we come to the position vector of some special points. ठीक है? थोड़ी सी थ्योरी और पढ़ेंगे. हम लाइंस की इक्वेशन वगैरह तक पढ़ लेते हैं और इसके बाद मैं आपको कुछ जो बेसिक क्वेश्चंस हमने थ्योरी पढ़ी उसके मैं आपको कराऊंगा. सो नेक्स्ट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ सम स्पेशल पॉइंट्स. पोजीशन वेक्टर भी हमने पढ़ लिया, कोलिनियर वेक्टर्स हमने पढ़े. अब स्पेशल पॉइंट्स के कोलिनियर वेक्टर्स में कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? लेट्स से इन अ ट्रायंगल वी हैव बीन गिवन द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द थ्री वर्टिसेस, दैट इज A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर. ये याद करने हैं, रट लेने हैं बेटा. तो द position vector of the centroid will be A vector plus B vector plus C vector by 3. Clear? Centroid is the intersection point of medians of a triangle. So the position vector of the intersection point of the medians will be A plus B plus C by 3. And the centroid
divides the median internally in the ratio 2:1. Now what is the median? If I want to tell you, if you join this, let's say this intersects BC at point D, median means it will bisect the opposite side, and the centroid divides the median internally in the ratio 2:1. Clear? Then the position vector of the in-center. Now what is an in-center? It is the intersection point of internal angle bisectors of a triangle. So if the opposite side, let's say the length of BC vector or BC side is x, AC is y, and AB is z. So the position vector of the in-center comes out to be XA vector plus YB vector plus ZC vector upon x plus y plus z. At least हमें सेंट्रॉइड और इन सेंटर के तो ये फॉर्मूले याद होने चाहिए. क्लियर? और ये बहुत सारी ऐसी चीजें आपको कोऑर्डिनेट में स्ट्रेट लाइन में भी मिलेंगी बेटा, तो इट्स better to remember these formulas. Okay. And in every triangle, I hope you know this, in every triangle, orthocenter, centroid and circumcenter are always collinear. हर triangle में orthocenter, centroid and circumcenter हमेशा collinear means एक ही line पर होते हैं, and the centroid divides orthocenter and circumcenter internally in the ratio 2:1. Clear? That I have mentioned. If the triangle becomes equilateral triangle, if the triangle is an equilateral triangle, then all the four special points here, orthocenter, centroid, circumcenter and again in center, they are all coincident. एक ही point होता है. All the 4 points are the same point in an equilateral triangle. In isosceles triangle, all the 4 special points, orthocenter, centroid, circumcenter and in center are collinear. अभी इन सेंटर कहां पर होता है? वी डोंट नो. इन एनी नॉर्मल ट्राइंगल और अ स्केलिन ट्राइंगल, इन सेंटर विल बी lying anywhere in a triangle inside the triangle. It doesn't lies on this line. But if the triangle becomes an isosceles triangle, then in center also comes on this line only. All 4 points becomes collinear. This property still holds in an isosceles triangle, that centroid divides H and O in the ratio 2:1. Clear? Now, then there comes a special 3D figure which is called a tetrahedron. I hope you have studied about tetrahedron in chemistry also. I think CH3 का जो structural diagram होता है, it's a tetrahedral shape. Tetrahedron is a diagram like this which has 4 faces and 6 sides. A tetrahedron has a 4 faces and 6 sides. Total faces I have written A, B, C. I hope you are able to see it. You have to visualize it in 3D. A, C, D. A, B, D वो पीछे की तरफ और एक नीचे जो फ्लोर पे दिख रहा है B, C, D. Total 4 faces and 6 sides. कौन कौन सी बेटा? A, B and C, D. A, B, C, D, they are called the opposite sides or the skew sides or the skew lines. A, B, C, D, which do not intersect each other. I will be telling you about the skew lines there also. Then one is AC and BD, they are skew lines, and one is BC and AD. So total 6 lines, जिसमें से दो के पेयर मैंने बताए, which are called opposite lines or they are called skew lines. Then there is a definition of a center of tetrahedron, or you can also say centroid of a tetrahedron. The centroid of a tetrahedron is if the position vectors of A, B, C, D are known, all the vertices, all 4 vertices के position vectors we know. There is, let's say there is origin somewhere here. Origin से A को join किया, A vector, B vector, C and D. So the position vector of G comes out to be A plus B plus C plus D by 4. जैसे सेंटर ट्राइंगल में A plus B plus C by 3 था, 3 vertices इधर 4 हैं, तो बहुत आसान है फॉर्मूला याद रखना. सेंटर जो होता है बेटा, इट इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एनी 2 स्क्यू लाइंस. कोई सी भी 2 स्क्यू लाइंस ले लो. जैसे बेटा मैंने AB और CD ले ली. अच्छा, AB का मिड पॉइंट क्या होगा? AB का मिड पॉइंट यहाँ पर A plus B by 2 और CD का मिड पॉइंट C plus D by 2. तो इन दोनों मिड पॉइंट्स को जोड़ो. किस किस को? A plus B by 2 एंड C plus D by 2. तो उसको ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट आ रही है उसका भी मिड पॉइंट, मतलब A plus B by 2 और C plus D by 2 का मिड पॉइंट कितना होगा? A plus B by 2 plus C plus D by 2 upon 2. So it becomes this only, A plus B plus C plus D by 4. Clear? So the midpoint of the line segment joining midpoint of any 2 skew lines. Any 2 skew lines के midpoints को join करो, तो जो नई line segment आ रही है उसका भी जो midpoint होगा will always be the centroid of that tetrahedron. Okay? ठीक है बेटा. Now we come to a very important part in our vectors, right? This is called a vector equation of a line. एक line की vector equation हम कैसे लिखते हैं is very important. तो इसमें फर्स्ट पार्ट है. देखिए एक लाइन के लिए हमें क्या जरूरत होती है बेटा. स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा है, फॉर अ स्ट्रेट लाइन, फॉर अ यूनिक लाइन यू मस्ट बी गिवन एटलीस्ट, यू मस्ट बी गिवन 2 कंडीशंस. जैसे
दो पॉइंट्स दे दें, अगर मैं दो पॉइंट दे दूंगा तो उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमेशा एक फिक्स लाइन जाएगी, या एक पॉइंट दे दूं, स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ा होगा स्लोप दे देते हैं, पॉइंट और स्लोप दे देते हैं बेसिकली। तो इसमें क्या क्या देते हैं वो हम देखते हैं। वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, हियर द टू पॉइंट्स आर A and B, the position vector of A is known and the position vector of B is known. The position vector of A is A vector and the position vector of B is B vector. So you can write the basically ये इक्वेशन कैसे आई मैं ये भी समझा सकता हूँ अगर आप चाहें तो। See what happens is I am assuming any variable point R on this line. This is a variable point. So you can say that A R vector is lambda times AB vector. बताओ लिख सकते हो क्या बेटा? AR vector is this and AB vector is this. So they are parallel vectors, or you can say they are collinear vectors. AR and AB are collinear, and collinear vectors can be expressed in terms of each other. Now what becomes AR vector? It becomes R minus A. And what becomes AB vector? It becomes B minus A. So you will get this only. Now variable vector, the position vector of any point R on this line. R vector क्या है? Position vector of any variable point moving on this line can be written as A plus lambda B minus A, where lambda is any real. For different values of lambda, मान लिया जी आपने lambda को 0 रखा तो आपको A वेक्टर मिल गया। तो lambda की different values क्या देंगी बेटा? इस लाइन के ऊपर different पॉइंट के position vectors। क्लियर? जैसे lambda को 1 रखा तो you'll get B, 2 रखोगे तो कोई और पॉइंट, बट whatever R vector you get by putting the value of lambda will be the position vector of a point on this line. So this is called a vector equation of a line passing through any two points, A vector plus lambda B minus A. Or you can say that this vector was which vector? B minus A. So this is parallel to a line. हमें जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है उसके पैरेलल है। इसी का यूज हम दूसरे में करते हैं। हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो एक पॉइंट से पास करती है और एक वेक्टर के पैरेलल है। पॉइंट से पास करती है तो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर तो A वेक्टर है, एंड इट इज पैरेलल टू B वेक्टर, सो आई विल मेक यूज ऑफ दिस। सो फॉर राइटिंग द इक्वेशन ऑफ अ लाइन यू नीड अ पॉइंट एंड अ वेक्टर व्हिच इज पैरेलल टू द लाइन। सो आई एम राइटिंग द इक्वेशन एज A प्लस लैम्डा B। A से तो पास कर रही है और B वेक्टर के पैरेलल है। अगेन लैम्डा कैन बी any real value. For different lambda you will get different position vectors of a point on this line. R is a variable point. Clear? Now some basic important points I have written that we can conclude or we can discuss according to this equations of a line. The first point is R vector is equals to lambda B vector if it is written that represents what? R is a variable point. It represents with a line, equation of a line which passes through origin. Now इधर A नहीं है तो A 0 हो गया, मतलब तो इसका मतलब लाइन origin से पास कर रही थी और किसके पैरेलल थी? B वेक्टर के, right? It represents a line passing through origin and parallel to B वेक्टर। अच्छा, अब देखो बेटा इस चीज में बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, स्क्यू लाइंस हैं या क्या है, या स्क्यू वेक्टर्स बोलते हैं क्या, कुछ होता है क्या? मैं आपको बहुत अच्छे से अभी क्लियर कर देता हूँ, ध्यान रखना इन चीज़ों को। अगर दो लाइन एक ही प्लेन में है, लेट्स से दिस इज अ बोर्ड, यार ये जो बोर्ड है ये बोर्ड एक प्लेन है। अच्छा, इस प्लेन में मैं कोई भी दो लाइंस बना दूं तो बेटा वो जो दो लाइंस होंगी या तो पैरेलल होंगी या इंटरसेक्टिंग होंगी। सो टू लाइंस इन अ प्लेन आर ऑलवेज आइदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। एक ही प्लेन में दो लाइन बनाओगे तो वो हमेशा या तो पैरेलल होंगी या इंटरसेक्टिंग होंगी, यही दो केस है। और अगर लाइंस एक प्लेन में नहीं है, जैसे जमीन पे बैठे हो एक लाइन खींच दो और एक छत पे खींच दो, कैसे भी जैसे मन करे, वो दोनों लाइंस दो डिफरेंट प्लेन्स में है। इफ द लाइंस आर इन डिफरेंट प्लेन्स देन दे आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। दे आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। स्क्यू लाइंस are neither parallel and neither intersecting lines because they are in different planes, so उनका different totally नाम दिया गया है which is called skew lines. Clear? अच्छा, अब क्या स्क्यू वेक्टर जैसी कोई चीज होती है क्या? तो बेटा आपको समझना है दो वेक्टर्स स्क्यू वेक्टर जैसी कोई चीज नहीं होती। The vectors which we study are movable in space. We can free vectors basically. We study about free vectors only. So one vector can be moved in a space and can be intersected or it can be basically दूसरे पे या तो पूरा रख दो as it is, coincident vectors कहते हैं, या उनको intersect करा सकते हो। So there is no concept like skew vectors. दो वेक्टर स्क्यू नहीं हो सकते, एक वेक्टर यहाँ एक वेक्टर यहाँ, आप कहने सर ये अलग अलग प्लेन में, एक वेक्टर को उठा के मिला दो भाई,
फ्री वेक्टर्स हैं, सो लाइंस आर स्क्यू, वेक्टर्स कांट बी स्क्यू, क्लियर, कीप दैट इन माइंड, ठीक है। अच्छा, नाउ आफ्टर दैट देयर इज अगेन वन मोर कंसेप्ट, इस पे भी बेटा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है जेई में, which is called angle bisector of two lines. Angle bisector of two lines. Now, what is the concept behind it? In this, you have been given two equations of a line. The equation of line is given in a vector form. First line is a plus lambda b, and second is a plus mu times c. Now, इससे हम क्या समझ सकते हैं? पहली लाइन a पॉइंट से, पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर a वेक्टर है, उससे पास कर रही है और b वेक्टर के पैरेलल है। दूसरी लाइन A पॉइंट से ही पास कर रही है और C वेक्टर के पैरेलल है। दैट मींस L1 L2 इंटरसेक्ट एट पॉइंट A। L1 L2 इंटरसेक्ट एट पॉइंट A, L1 is parallel to B vector, L2 is parallel to C vector. Now we need to find the equation of angle bisector of these lines. हम इन्हें लाइन की एंगल बाइसेक्टर्स तो मैंने यहाँ शो कर लिया, one is B1 vector and one is B2 vector. Now what happens is, let me clear you one thing. देखिए बेटा, अगर हम यहाँ बताता हूँ, एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, समझना ध्यान से, है ना। पैरेललोग्राम अगर मैं बनाऊं, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, तो इसका जो डायगोनल होता है, क्या पैरेललोग्राम का डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होता है क्या? नहीं होता। अगर आपके दिमाग में हाँ आया था तो एक बार वापस से सोचने की जरूरत है। पैरेललोग्राम का डायगोनल इज नॉट एन एंगल बाइसेक्टर, बट अगर यही पैरेललोग्राम रोम्बस होता, अगर ये रोम्बस होता, देन द डायगोनल इज एन angle bisector. So to convert it into a rhombus, I need to basically इनका मैग्नीट्यूड सेम करना है। तो a वेक्टर की जगह अगर मैं इसे a कैप और इसे b कैप लिख लूं, I know that unit vector means a vector direction change नहीं हो रहा है and its magnitude becomes 1. So both are of same magnitude. This becomes a rhombus. Now in case of a rhombus, if you write this diagonal, अभी हमने देखा था diagonal क्या होती है, a cap plus b cap, then it becomes an angle bisector, and another diagonal, it becomes the different another one angle bisector. So that is what we are doing. b vector की बजाय मैंने इसे b cap और इसे c cap लिखा, उससे यूनिट वेक्टर्स बन गए। then the resultant of that, lambda times b cap plus c cap, it gives you the direction of angle bisector, and b cap minus c cap gives you the direction of the another angle bisector. So you can write the angle bisector, they are both passing through a point, a plus lambda times b cap plus c cap and a plus mu times b cap minus c cap are the equation of angle bisector of these two lines. Clear? So इतनी थ्योरी जो हमने पढ़ी, based on that, जैसे लाइन्स वाइन्स की इक्वेशंस है या एनीथिंग बेसिक थिंग्स, वी विल बी डूइंग सम बेसिक इलस्ट्रेशंस बेस्ड ऑन इट। ओके, थैंक यू प्यारे बच्चों। आप सभी हमारे मोशन के जो वीडियोस हैं उनको आप देख रहे हैं और अपना प्यार हम सब के साथ बांट रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, ताकि आप हमारे लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स आराम से देख सकें, उसके लिए आप लिंक पर जाके क्लिक करें और अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। उसके अलावा अगर आप हमारे डाउट्स सॉल्विंग उसको एनरोल करना चाहते हैं, साथ ही साथ स्टडी मटेरियल भी चाहते हैं, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर जो प्रीमियम हमारा अकाउंट है उस पर क्लिक करके आप उसको एनरोल कर सकते हैं। Okay students, now let us solve some questions based on the theory that we have revised. The first question says that you have to find the point of intersection of the two given lines. हमें इन दोनों लाइंस का point of intersection क्या होगा वो find करना है, ठीक है। तो बेटा कैसे हम इस क्वेश्चन में प्रोसीड करेंगे? मान लीजिए दो लाइंस हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये पॉइंट हमें देखना है। तो बेटा अगर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट का दोनों लाइंस के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर सेम होगा, नहीं क्या भाई? जैसे लाइन 1 है, लाइन 1 पर कोई भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ लैम्डा लिखा जा सकता है। क्या होगा बेटा? वो होगा -3, अच्छा इसका मतलब -3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 0k कैप। इस पॉइंट से तो पास हो रही है और इस वेक्टर के पैरेलल है, तो पॉइंट क्या होगा? -3 -4 लैम्डा कॉमा 6 प्लस 3 लैम्डा कॉमा 0 प्लस 2 लैम्डा। That is what the position vector of any point which is moving off line 1 will look like, and the position vector of any point on line 2 will look like -2 -4 mu comma 0, that is mu only, and then 7 plus mu. So now if these two lines intersect, line 1 and line 2 intersect, तो दोनों के जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है पोजीशन वेक्टर सेम, मतलब
उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट सेम. So equating the x, y and z coordinate, I'll get -3 minus 4 lambda is equals to -2 minus 4 mu. Or you can say that एक तरफ लिया है तो 4 times of mu minus lambda is equals to 1. One of the equations. Then equating the y coordinate, that is 6 plus 3 lambda is equals to mu. Or you can say that mu minus 3 lambda is equals to, or you can just equate, you can put the value of mu from the second equation to the third equation. So this becomes 4 times mu is what? 6 plus 3 lambda minus lambda is equals to 1. ठीक है, 6 4s are 24 and 2. 4 2s are 8 lambda is equals to 1. 8 lambda is minus 23. Lambda is minus 23 by 8. This is the value of lambda. And if you put the value of lambda here, you will get the value of mu as minus of 3369 by 8 is equals to mu. Or mu comes out to be 48 minus 69 by 8. That is minus of 21 by 8. This is the value of mu. Okay, now what happens is जल्दबाजी में कई बार students what they do is lambda की value आ गई, they just put the value of lambda here. If you put lambda, you'll get x, you'll get y, and you'll get z. If you put mu, you'll get x, you get z also. x, y, z आ जाएगा. और ये दो ऑप्शन में कंफर्म दिखेंगे बेटा. ये आपको a और b या b c किसी भी ऑप्शन में दिखेंगे ताकि वो चाहते हैं गलत कराएं. Now the thing is the question is still not finished here. जो आपने निकाला लैम्डा और म्यू रख के, दैट माइट बी करेक्ट इफ फॉर दीज करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू देयर z कोऑर्डिनेट इज आल्सो सेम. ये जरूरी है. देखिए बेटा, दो लाइंस का x और y तो सेम हो गया, पर z सेम नहीं है तो वो शिफ्टेड हो सकती हैं. क्लियर? सो दैट मीन्स दे विल नॉट बी इंटरसेक्टिंग ईच अदर और दे विल बी इन डिफरेंट प्लेन्स. सो दे विल बी स्क्यू लाइंस. अगर z coordinate for this lambda and mu comes out to be same, then it's okay. Then we can find the values of, then we can find the point of intersection by putting the value of lambda or mu in any one of the points. So let us just check कि क्या 2 lambda 7 plus mu के बराबर है. अगर हम lambda की वैल्यू रख दें, so it becomes minus 46 by 8 is equals to 7 minus 21 by 8. So 7 8s are 56 minus 21 by 8 is definitely not equals to minus 46 by 8. That means these two lines are what lines? They are skew lines. They are non-intersecting lines. So what is the point of intersection? There is no point of intersection of these two given lines. बाकी जनरल नॉर्मल क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही प्रोसीड करना है. अच्छा, पैरेलल लाइंस है पैरेलल लाइंस है दैट वी कैन इजीली सी बाय द ratios of the vectors जो आपने यहाँ दे रखे हैं. तो अगर ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर सेम है ना, डायरेक्शन वाइज सेम है, उनके रेशियोज जो है x, y, z के वो इक्वल हैं, तो वो पैरेलल लाइंस हो सकती हैं. पैरेलल के साथ साथ वो कोइंसिडेंट भी हो सकती हैं. समझ में आ रहा है? देखिए, ये है पैरेलल और कोइंसिडेंट का मतलब एक के ऊपर एक. अच्छा, एक के ऊपर एक भी होंगी तो भी वो सेम वेक्टर की पैरेलल होंगी. कोइंसिडेंट होगी कैसे पता चलेगा? कोइंसिडेंट के लिए जब आप x, y और z को इक्वेट करोगे तो आपको इन्फिनाइट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे. और पैरेलल है और मतलब पैरेलल ही है, दे आर नॉट कोइंसिडेंट, तो वेक्टर्स तो पैरेलल होंगी, पर जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे तो उनका कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको नहीं मिलेगा. सो अभी तो ये पैरेलल भी नहीं थे, लाइंस जो थी इनके वेक्टर्स पैरेलल भी नहीं थे और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी नहीं आया, तो वो स्क्यू लाइंस बन जाती हैं. ठीक है? That is how we find the point of intersection of any two lines. Clear? चलो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं बेटा. इन ट्राइंगल ABC, ध्यान से पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल है, ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हमें आने चाहिए. और मैं अब आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के शॉर्ट ट्रिक, दो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ. ध्यान से सीखेंगे. ऑब्जेक्टिव में कई बार ये थ्योरम्स लगकर क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं ना, वो एज इट इज सिलेबस में तो नहीं है, बट इफ वी रिमेंबर दीज थ्योरम्स, ज्योमेट्रिकल थ्योरम्स है, सो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी इजीली सॉल्व. सो पहले मैं आपको वेक्टर के थ्रू कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा, वो हमें आना चाहिए, क्योंकि जो थ्योरम्स है वो हर क्वेश्चन में लेंगे, इट्स नॉट नेसेसरी. इन ट्राइंगल ABC, D divides BC in the ratio 3:2. So let us start drawing the diagram also. A, B, C
D divides BC in the ratio 3:2. Now maximum students get a confusion. D divides BC in the ratio 3:2. So D यहाँ से 3:2 की यहाँ से 3:2, तो बेटा फिक्स है, या तो लिखा होगा और नहीं लिखा, तो जो पॉइंट जिस ऑर्डर में लिखा है, जैसे पहले B लिखा है फिर C लिखा है, तो B से 3 और C से 2 का रेशियो मानना है। ठीक है बेटा, ये D मैंने मान लिया और ये 3:2 का रेशियो हमें गिवन है। एंड E divides CA in the ratio 1:3. So let us take E point here and it divides in the ratio 1:3. Lines AD and BE, lines AD and BE, lines थोड़ी बन गई, AD and BE, they meet at point H. They meet at point H. Okay, and then CH meets AB in F. Okay, CH like this was H point, meets AB in point F. So you have to find the ratio in which F divides AB. F divides AB. So let's say lambda is to 1 or m is to n, it doesn't matter. M is to n लिखना है या lambda is to 1 लिखना है, एक ही बात है। M is to n को n से डिवाइड कर दो तो m by n is to 1 हो जाता है। m by n को lambda लिख लिया, it doesn't matter. Lambda is to 1. This ratio is what we have to find. So how can you proceed in such questions? Now what can be done? What can be done in this is, इसमें से किसी भी एक पॉइंट का ना ओरिजिन मान लो, थोड़ा आसान हो जाता है, बी ए सी किसी को भी। सो इसका पोजीशन वेक्टर मैं ए वेक्टर मान लेता हूँ और इसका पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर मान लेता हूँ। अब मैं क्या करने वाला हूँ बेटा, अच्छा सबसे पहले डी का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं क्या? डी सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा बेटा, ओरिजिन और सी को 3:2 के रेशियो में, तो 3c + 20/5, सो इट बिकम्स 3c/5. It will be the position vector of D. Okay, this is A and this is C. We can get the position vector of E. 3c plus A, let us write 3c plus A divided by 4. This is the position vector of E point. Now to get the position vector of F, what things we require? देखो F जो है वो AB लाइन और CH लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। AB लाइन और CF लाइन, तो अगर मैं AB की इक्वेशन तो मैं लिख ही सकता हूँ, ओरिजिन से पास हो रही है और A उसका पोजीशन वेक्टर है, आई कैन राइट द इक्वेशन ऑफ दिस। CF की इक्वेशन लिखने के लिए C पॉइंट पता है, अगर H पॉइंट आ जाए तो ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, उन दोनों लाइंस को सॉल्व करूंगा तो F पॉइंट आएगा। दिस इज द थ्योरेटिकल कंसेप्ट जो माइंड में बना लिया, अब मुझे प्रोसीड करना है। अच्छा H पॉइंट कैसे आएगा? H AD और BE का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो फर्स्ट आई विल बी राइटिंग द इक्वेशन ऑफ लेट्स से लाइन AD। AD लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए क्या करना है बेटा, कोई भी लाइन की इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, मुझे 2 पॉइंट्स पता है। इट इज पासिंग थ्रू A पॉइंट एंड दिस माइनस दिस 3c/5 अभी हमने थ्योरी में पढ़ा ही था, सो वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन AD इन दिस वे। क्लियर? अच्छा अगर आप, चलो अभी ऐसे लिख लेते हैं, एंड व्हाट विल बी द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन दिस एंड BE? व्हाट विल बी द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन BE? पासिंग थ्रू ओरिजिन and through 3c plus A by 4. Clear? Now to get the point H, for H what you have to do is you have to equate the position vector of a point on the line AD and on B, because it is the intersection of AD and B, तो दोनों का उस पॉइंट पर H पर दोनों का पोजीशन वेक्टर सेम होगा। क्लियर? तो देखो बेटा यहाँ A का कोफिशिएंट पहले में कितना था, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ A इन दिस? इट इज 1 माइनस लैम्डा, और इधर A का कोफिशिएंट कितना है बेटा? μ/4। 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू μ/4 और μ कम्स आउट टू बी 4 माइनस 4 लैम्डा। एक इक्वेशन बना ली। सिमिलरली व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ C हियर? द कोफिशिएंट ऑफ C इज 3 λ/5 is equals to, what is the coefficient of C here? It is 3 μ/4. 3 μ/4. Cross check कर लो बेटा, coefficient of C 3 λ/5 और coefficient of C 3 μ/4. So from here 3 से 3 gets cancelled. The value of mu comes out to be 4 λ/5. Second equation. Let us put the value here. So 4 λ/5 plus 4 lambda is equals to 4. 4 gets cancelled. If you take LCM 5 plus 1 6, λ/5 is equals to 1, or lambda comes out to be 5/6. Now if you get the value of lambda, just put the value of lambda here, you will get the position vector of H. So what is the position vector of H point beta?
it will be a plus 5 by 6 into 3c by 5 minus 5 by 6 of a vector. So the position vector of H comes out to be a this a by 6 and 5 से 5 get plus c by 2. Clear? This is the position vector of H point. Now what I want to do is I will need to find the position vector of F. तो AB line और CF line की equation लिखनी है. So what is the vector equation of line AB? It is just simply k times of a vector. Origin से pass कर रहा है. And what is the vector equation of line CH? CH. So it can be written as passing through C plus L times this minus this. So H minus C. So a by 6 plus c by 2 minus c will become minus c by 2. Now for f point, अब बेटा f point की पोजीशन वेक्टर के लिए मुझे ab और ch को सॉल्व करना है, तो वही मैं दोनों से कोफिशिएंट्स कंपेयर करता हूं. तो k should be is equals to a का कोफिशिएंट कितना है बेटा l by 6 एंड यहाँ c का कोफिशिएंट कितना है 0 और यहाँ c का कोफिशिएंट कितना है बेटा 1 minus l by 2 should be 0. So the value of L comes out to be 1 minus L by 2. Value of L comes out to be 2. So clear hai? So the value, if you put the value of L as 2 here, if you put the value of L as 2 here, what you get as position vector of F, that is 2 रखने पे बेटा minus C से plus C तो cancel हो जाएगा. It becomes A by 3. It becomes A by 3. Now what you have to do? Find the ratio in which F divides AB. F AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो λ/1 निकालना था. ठीक है. So what is AF vector becomes? AF vector का magnitude. Basically you need to find AF vector magnitude upon BF vector magnitude. भाई λ/1 निकालना है तो इसका और इसका रेशियो निकालना है, तो A minus F is F by 3, that is 2A by 3. 2A by 3 का magnitude divided by A by 3 का magnitude, which comes out to be 2:1. Final answer comes out to be 2:1. So it is, of course it is solvable, but it is a bit lengthy approach. What we had done is we are finding the vector equations of lines जो हमें पता है और फिर प्रोसीड कर रहे हैं. तो हम पहले H पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाला, उसमें हमने AD और BE लाइंस को आपस में सॉल्व किया. आफ्टर H हमने CH लाइन लिखी, मतलब वो यही लाइन हो गई, और इसको AB लाइन की इक्वेशन के साथ सॉल्व करके F पॉइंट निकाला. जब F पॉइंट आ गया तो ये वेक्टर और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का रेशियो लिया, तो उस समय AF और FB का जो रेशियो क्वेश्चन में पूछा था वो हम फाइंड कर पाए. ठीक है. नाउ द थ्योरम्स विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट, ट्राइंगल्स की थ्योरम्स है बेटा, बहुत ध्यान से आप उसको देखें और थ्योरम याद रहे तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, जल्दी हो जाएंगे क्वेश्चन. ठीक है. लेट्स सी व्हाट थ्योरम इज आई एम टॉकिंग अबाउट. सो द थ्योरम दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, इट्स कॉल्ड Sivas theorem. It's called Sivas theorem. And what does this theorem says? That in a triangle ABC, अगर हम तीनों वर्टेक्स से 3 लाइंस बनाएं and they intersect at some point, let's say P inside the triangle. वर्टेक्स से लाइन बनाई, कोई भी P पॉइंट, वो तीनों लाइंस AD, BE and CF, they intersect at any point inside the triangle P. Then starting from let's say A, AF upon FB, AF upon FB into B पे खत्म है, B से शुरू हो जाओ, BD upon DC into CE upon EA, इनका रेशियोज का जो प्रोडक्ट है इज ऑलवेज 1. नो नीड फॉर द प्रूफ ऑफ इट, जस्ट रिमेंबर इट. तीनों पॉइंट से लाइंस बनाई, तीनों लाइंस इनसाइड द ट्राइंगल इंटरसेक्ट करना जरूरी है. अच्छा, वो तीनों लाइंस ने सामने वाली साइड्स को DEF पर इंटरसेक्ट किया था. सो स्टार्टिंग फ्रॉम एनी वन ऑफ द वर्टेक्स AF FB BD DC into CE EA, वापस उस पॉइंट पे आ जाओ तो रुक जाओ, इनके रेशियोज का प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है, कंफर्म. ठीक है. चलिए, अब ये जो क्वेश्चन था, चलो पहले मैं दूसरी थ्योरम भी बता देता हूँ बेटा, फिर हम ये क्वेश्चंस जो है इन थ्योरम से ट्राई करेंगे. सो दिस वाज
first theorem, and the another one, and the another theorem, it is called Menelaus theorem. Menelaus theorem. What is the statement of this theorem? The statement of this theorem is, let's say this is a triangle ABC and any transversal, let's say like this, it intersects the sides. वो उस लाइन को ना तीनों साइड्स को कट करना है. दो को तो जैसे इसने इंटरनली कट किया, वो तीसरी साइड को तो बाहर कहीं ना कहीं कट करेगी करेगी. Let's say this is D point, this is E point, and this is F point. So a line is intersecting the three sides of a triangle in this fashion. Then starting from any one of the vertex, AD upon DB, AD upon DB into, अब B से स्टार्ट किया, लाइन ने ट्राइंगल की साइड को D पे कट किया था, तो हमने उस पॉइंट से पहले बेटा वो पॉइंट जहां कट किया था वो रेशियोज लिए हैं AD अपॉन DB. अब B से इसने BC को कहां कट किया है? F पे, तो पहले B से आपको F तक जाना पड़ेगा, BF अपॉन अब CF, BF अपॉन CF. देखो बिल्कुल ऐसे ये पॉइंट नया पॉइंट आया था कट करने के कारण, तो AD DB. अच्छा, कट करने के नया पॉइंट F आया था, तो B से BF अपॉन CF. ठीक है, अब C से स्टार्ट करते हुए CE इंटू EA. वैसे तो ये वाली वैल्यू -1 होती है, पर बेकड़ा क्योंकि अपन सेगमेंट्स की बात कर रहे हैं ना, रेशियो ऑफ साइड लेंथ ले रहे हैं, तो आप +1 भी लोगे तो चलेगा, डोंट वरी, आंसर आ जाएगा. ठीक है ना. दिस इज the two important theorems that I was talking about. Remember that such questions can be easily tackled. Such triangle, जैसे ट्राइंगल में लाइन वाइन कट कर रही है, हम इससे कोशिश कर सकते हैं. जैसे मैं आपको सेकंड क्वेश्चन जो है करके बताता हूँ, डायग्राम वापस से बनाते हैं. पढ़ें सेकंड क्वेश्चन. इन ट्राइंगल ABC D डिवाइड्स हमने बनाया ही था, अभी फटाफट हम बना लेते हैं. एक ट्राइंगल है ABC ट्राइंगल है ना, लेट्स से दिस इज ABC, मैं वैसे ही बना रहा हूँ. D ने डिवाइड किया था 3:2 के रेशियो में, AD BE, दिस डिवाइड्स इन द रेशियो 1:3, ऐसे ही था ना. CA, हाँ CA इन द रेशियो 1:2, और फिर ये ज्वाइन किया था ऐसे, दिस वाज H पॉइंट, दिस इज F पॉइंट, एंड λ/1 इज व्हाट वी हैड टू फाइंड. सी, easily applicable this property. All the three lines intersect at a point H, so starting from any vertex A. So AF upon FB, that is λ/1, into BD upon DC, that is 3:2, into CE upon EA, that is 1:3. ये 1 होना चाहिए. 3 से 3 कैंसिल, तो लैम्डा comes out to be 2/1. काम खत्म भैया. उतनी मेहनत लंबी चौड़ी जो करी थी इससे पहले, एक लाइन में with the help of Siva's theorem you can say that the ratio AE upon FB is 2:1. Now it looks very simple, its application when it comes, it's dependent on you. वो क्लिक करना, ये फॉर्मेट, ये डायग्राम दिमाग में रहना बहुत ज़रूरी है. क्लियर है? चलिए, now let us attempt another question. Now this question number 3, जैसे मैंने बेटा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया with the help of vector equation, बिल्कुल कर सकते हैं. I leave it to you. I will be telling you the quick methods of solving it. जल्दी कैसे कर सकते हैं. ठीक है, तो हम देखेंगे शिवाज और Menelaus theorem कहीं लग सकती है क्या इसमें भी. ठीक है. Now let us come to the third question. Okay, you will read the question with me. In a triangle AOB, E is the midpoint of OB. Okay, let us start drawing the diagram also. AOB. In triangle AOB, E is the midpoint of OB. O origin question में दे रखा है, E is the midpoint of OB. Okay, let us consider the position vector as B, इसका position vector A. ठीक है, so midpoint 1:1 का ratio. Next, F divides BA. F divides BA in the ratio 1:2. Here there is some point F which divides in the ratio 1:2. Clear? That's I have written. Find OP upon PF. You have to find OP upon PF, where P is the intersection point of OF and AE. इनका intersection point P point है. Clear? इनका intersection point P point है. So you have to find OP upon PF. You have to find OP upon PF. This is what we have to find. ठीक है, तो let us consider this as λ/1. Clear?
कर सकते हैं भाई हम, कंसिडर है ना ये ट्राइंगल, ये रेशियो जो हमें फाइंड करना है OP और PF, O was given to be origin। अच्छा, अब हाउ विल वी प्रोसीड इन दिस? कुछ डायग्रामेटिकली आपको ऑब्जर्व हो रहा है। शिवास थ्योरम तो लग नहीं रही, शिवास थ्योरम के लिए तो तीसरी वर्टेक्स से भी यार ऐसी लाइन जानी चाहिए थी। क्या कोई मेनलॉस थ्योरम जैसा कंसेप्ट तो नहीं लग रहा है यार? कहीं हम मेनलॉस थ्योरम तो नहीं लगा सकते इसमें? ऐसा तो नहीं है। पर अगर मेनलॉस थ्योरम हमें लगानी है, if you want to apply Menelaus theorem in this, so which triangle will you be considering in it? That is more important। प्यारे बच्चों, हमें रोज ढेरों और ढेरों कमेंट्स मिल रहे हैं और उसमें हमें स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट भी आ रही है कि सर हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो चाहिए या इस पर्टिकुलर टॉपिक के हमें कुछ क्वेश्चंस चाहिए। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मोशन के जो है YouTube चैनल पे जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए, उसके बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। क्योंकि हमें ज़्यादातर जिन चीज़ों की रिक्वेस्ट मिल रही है, जिस वीडियो की रिक्वेस्ट मिल रही है, आप YouTube चैनल पे जाके चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने ऑलमोस्ट सारे ही जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड कर रखे हैं। तो आप उसको आराम से एनरोल करके वीडियोज़ देख सकते हैं ताकि आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा उठा सकें। बताइए भाई, कौन से को ट्रांसवर्सल मानेंगे, किसको अपन क्या करेंगे? आई थिंक वी शुड जस्ट ट्राई एन अटेम्प्ट। अगर मैं ये ट्राइंगल कंसिडर करूं, इफ आई कंसिडर दिस ट्राइंगल, क्लियर? सो इन दिस ट्राइंगल दिस लाइन विल बी माय ट्रांसवर्सल। विल इट बी और विल इट नॉट बी? सी, इसको इसने P पे इंटरसेक्ट किया, इसको यहाँ किया और तीसरी साइड को यहाँ बाहर किया। तो इस ट्राइंगल में आई कैन अप्लाई द Menelaus theorem। How will we apply the Menelaus theorem? OE जहाँ से कट करता है upon this, right? Let us start writing OE upon EB into, then from B। अच्छा, इसको कहाँ कट किया? Transversal is this one is transversal। तो इसने इस साइड को A पे कट किया, तो फर्स्ट B से A पे जाएंगे, तो BA upon FB, clear? into BA upon this was the side na, right? FB nahi FA, sorry, my mistake। BA upon FA, then from FP upon OP is one ratio, right? Now let us write the ratios। OE is to EB is 1:1 into, acha, this was 1:2, so this is total 3, so this is total 3 upon FA will be total 2 into FP is 1 by lambda is equals to 1. So you can from here easily say that lambda comes out to be 3:2. The value of lambda comes out to be 3:2. That is what you have to find. You have to find OP upon PF. OP upon PF. Lambda is to 1. It comes out to be 3:2. That is what will be the final answer. Clear? So this becomes very easy अगर हम मेनलॉस थ्योरम या शिवास थ्योरम देखकर ऑब्जर्व करके अप्लाई कर सकें। ठीक है बच्चा लोग? ओके बेटा, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इन द थ्योरी सेक्शन इज द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे? कोलिनियर का मतलब होता है ऑल द 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। So I have taken the 3 points ABC with position vectors A vector, B vector and C vector, and these 3 points are collinear if they are bounded by the condition that XA plus YB plus ZC is 0. X, Y, Z are some scalars and all X, Y, Z are not simultaneously 0. X, Y, Z are scalars and they are not simultaneously 0 such that XA plus YB plus ZC is 0 and X plus Y plus Z 0 होना ही चाहिए। समझ में आ गया? 3 पॉइंट्स के कोलिनियर होने की कंडीशन यही है कि उनका लीनियर कॉम्बिनेशन XA प्लस YB प्लस ZC 0 होगा और साथ ही साथ में X, Y, Z तीनों का सम एक साथ 0 होगा। रट लेना बेटा इस चीज को, ये है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। आफ्टर दैट नाउ वी कम टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। ठीक है? और वैसे ही जैसे थ्योरी अभी करा रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा और इनफैक्ट नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश कर रहा हूँ इस फर्स्ट लेक्चर में आपको सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और थ्योरेटिकल पार्ट जो है विथ सम लिटिल बिट ऑफ इलस्ट्रेशंस वो मैं कराता जाऊँ, जैसे अभी हमने कुछ करे थे इलस्ट्रेशंस। और नेक्स्ट क्लास में मेजर जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मेजर फोकस हम इलस्ट्रेशंस पे रखने वाले हैं। ठीक है? सो द नेक्स्ट इज नाउ प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स and we will be revising starting with the dot product of 2 vectors which is also called the scalar product।
And why it's called a scalar product? Because the final outcome is a scalar quantity and not a vector quantity. So the dot product of two vectors is represented by a dot between two vectors A dot B, and it's defined as magnitude of A into magnitude of B into cos theta, where theta is the angle between the two vectors. This is a symbol when written between two vectors. It's called angle between two vectors. And how the angle between two vectors is defined? Their initial point of two vectors should be same. Initial point should be same, then the angle between them two, theta. This is the angle between two vectors. And what is the range of theta? The theta can start from 0 and it finishes till pi. So theta varies from 0 to pi, both inclusive. If theta is 0, then the vectors A and B will be like parallel. Direction भी same होंगी and parallel. If theta is pi, then they will be unlike parallel. कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है ना? तो theta 0 से pi तक vary करता है. Now geometrically, what does A dot B represents? Geometrically, A dot B represents, let's say this is A vector and this is B vector. अगर मैं A का B पे component करूँ, component, तो this component will be of what length? यहाँ से लेकर यहाँ तक की length कितनी होगी बेटा? A cos theta. Now you can see that it is A cos theta into magnitude of B. So you can geometrically understand A dot B as the projection of A. I hope you know what is projection. यहाँ से अगर लाइट मारे तो A की जो शेडो B पे बनेगी, दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B. A को B पे प्रोजेक्ट किया, तो प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B इज A cos थीटा इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर. जिस पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो. दैट इज व्हाट द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ A डॉट B means. A dot B is projection of A on B into magnitude of B, or you can say that projection of B on A, that will be B cos theta into magnitude of A. That one and the same thing. ऐसे भी हम उसको समझ सकते हैं. This is a geometrical meaning of the project A dot B. Now what happens if theta is acute? अगर theta acute है, acute जब बोलते हैं that means theta lies between 0 and pi by 2. ओपन ब्रैकेट 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है, 0 और 90 इंक्लूडेड नहीं है. तो अगर थीटा एक्यूट होगा तो cos थीटा हमेशा पॉजिटिव होगा. दैट मींस A डॉट B हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव. बट जो इंपॉर्टेंट कंडीशन मिस होती है वो होती है बेटा इसकी, A शुड नॉट बी लैम्डा B के बराबर. देखो अगर थीटा 0 हो जाए तो A इंटू B आएगा तो भी A डॉट B पॉजिटिव आएगा, और उस समय A और B कोलिनियर पैरेलल हो जाएंगे. हमने लिखा था अगर वेक्टर्स कोलिनियर हैं तो एक को दूसरे की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. हम नहीं चाहते कि ऐसा हो. एक्यूट का मतलब 0 नहीं होगा, उसमें 0 नहीं होगा तो A डॉट B पॉजिटिव होगा और A लैम्डा B की फॉर्म में नहीं होना चाहिए. ठीक है, अगर थीटा 0 है तब A को लैम्डा B लिखेंगे जहां लैम्डा पॉजिटिव रियल होगा. ऑलरेडी डिस्कस, लाइक पैरेलल है, डायरेक्शन सेम है, इसलिए लैम्डा पॉजिटिव रियल होना चाहिए. सेम अगर थीटा ऑब्ट्यूस है, थीटा 90 से ज्यादा है और 180 से कम है तो cos थीटा नेगेटिव होगा क्योंकि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है. तो A डॉट B नेगेटिव होना चाहिए. अच्छा, नेगेटिव में A डॉट B माइनस AB भी इंक्लूड हो गया, मतलब cos थीटा को पाई जब रखा, वो भी कोलिनियरिटी की कंडीशन है, तो बेटा वो कंडीशन भी हटानी पड़ेगी. A डॉट B तो 0 होगा ही होगा, एंड A इज नॉट इक्वल टू म्यू टाइम्स B. Again A and B should not be collinear. This is because of 180 degree का condition. And if theta is pi, then they will be collinear. Then you will write A as mu B, where mu will be negative real values. Okay. Acha, and what happens if theta is 90? This is the condition of two perpendicular vectors. A and B vectors will be perpendicular if their dot product is 0. Right? A dot B 0. That means cos theta 0. Theta cos theta 0 will be when theta is 90 degree. Then there are some basic formulas, basic identities that you must be knowing. A dot A is magnitude of A square. Vector A plus B का whole square means magnitude of A square plus magnitude of B square plus 2A dot B. A minus B whole square is A square plus B square minus 2A dot B. A plus B plus C whole square is A square plus B square plus C square. Magnitude of A square plus magnitude of B square plus magnitude of C square plus 2A dot B plus 2B dot C plus 2C dot A. जल्दबाजी में A B B C C A मत लिख देना. It's the dot product A dot B plus B dot C plus C dot A. ठीक है? Now then there is a general expression of dot product. That means if a vector A is represented in terms of I, J and K as AI cap plus BJ cap and CK cap, and similarly B is represented as B1 I cap plus B2J cap plus B3K cap, then the dot product of A dot B will be, when I dot I you will do, I is a unit vector, it becomes 1, so it will become A1 B1, I dot J 0, I dot K 0 because they are mutually perpendicular vectors. So it does just become A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3.
Again, if you need to find the angle between the two vectors, तो बेटा this becomes equals to magnitude of A, magnitude of B cos theta. So you can easily divide by the magnitude of A and magnitude of B. Then you will get the value of cos theta. Achha, can you tell me what is the magnitude of A vector? That is equals to under root of A1 square plus A2 square plus A3 square, and magnitude of B vector is under root of B1 square plus B2 square plus B3 square. ठीक है? Then there comes a formula of projection of A on B. A vector का B पे projection क्या है? This is B vector and this is A vector. तो A का projection B पे is just this length and this is equal to A cos theta. तो इसको dot product की हेल्प से कैसे लिखते हैं बेटा? What is A dot B? It is A B cos theta and we require only cos theta. तो इसलिए हमने A dot B को magnitude of B से divide कर दिया. So how do we define projection of A on B? जिस वेक्टर को हम मान लीजिए B पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो पहले तो A डॉट B करो और जिस पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे. ठीक है? A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B. Then there comes a thing, vector component of A along B. A का B के along वेक्टर कंपोनेंट. तो देखो बेटा प्रोजेक्शन मतलब बेसिकली A का मैग्नीट्यूड B पे कितना था और उसको डायरेक्शन देनी थी. डायरेक्शन किसकी देनी है? B की. तो पहले तो मैंने प्रोजेक्शन निकाल लिया. A का B पे प्रोजेक्शन वो मैग्नीट्यूड दे देगा A डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B, और डायरेक्शन देगा B की डायरेक्शन मिलेगी किसे? B कैप से. अब मुझे मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना है ना. यहाँ पर बीच में बेटा डॉट फॉट कुछ नहीं है. दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी. तो B कैप को A डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B, तो ये लेंथ हो गई वेक्टर की, और डायरेक्शन B कैप की देनी थी. तो दैट इज वेक्टर कंपोनेंट ऑफ A ऑन B. समझ में आ गया? तो ये सब चीजें बेटा अपन को अच्छे से याद रहनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए कंसेप्ट. जो इंपॉर्टेंट है जैसे मैंने लिखा, इसकी गलती नहीं होनी चाहिए. ये गलती करवाते हैं बेटा जेईई के एग्जाम के अंदर. एक कंडीशन मिस हो जाती है डिपेंडिंग ऑन दीज टू थिंग्स व्हिच आई हैव टोल्ड यू. ओके, चलिए बेटा. नाउ आफ्टर द थ्योरी ऑफ डॉट प्रोडक्ट वी विल सी द थ्योरी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड द वेक्टर प्रोडक्ट. Right, vector product because the final outcome is the vector quantity. It is written as cross symbol लिखते हैं A cross B. Formula होता है magnitude of A into magnitude of B into sin theta n cap, where theta is the angle between A vector and B vector. And what is n cap? N cap is a unit vector which is perpendicular to the plane of A and B vector. ठीक है, दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होते हैं, ये बात आपको समझनी है. दो वेक्टर्स आर ऑलवेज इन अ सेम प्लेन. हम दोनों वेक्टर्स दो ही हैं, तीन की नहीं, दो की बात कर रहा हूं. दो वेक्टर्स होंगे तो हमेशा कोप्लेनर होंगे. ठीक है, कहीं से भी उठा के रख दो एक प्लेन में वो हमेशा आ जाएंगे. ठीक है, कोई ना कोई प्लेन हमेशा ऐसा होगा जो दो वेक्टर्स को कंटेन करेगा. तो जिस प्लेन में ए और बी हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर जो होता है वो एन कैप होता है, और उसकी डायरेक्शन मिलती है राइट हैंड थंब रूल. मतलब जब आप ए की डायरेक्शन में फिंगर्स रखो और बी की तरफ क्रॉस करो, ए क्रॉस बी, तो द डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ एन कैप. राइट, सो जैसे इस प्लेन में ए और बी है तो ए क्रॉस बी करने से जो डायरेक्शन मिल रही है एन कैप, क्लियर, विल बी बेसिकली अ यूनिट वेक्टर इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द प्लेन ऑफ ए एंड बी. क्लियर. सो ये अपन को जो फॉर्मूला है क्रॉस प्रोडक्ट का याद रखना है. सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. राइट. अच्छा, उसके बाद बेटा एक आइडेंटिटी आती है विच इज कॉल्ड लैग्रेंजेस आइडेंटिटी, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई विल सजेस्ट यू टू रिमेंबर इट्स फॉर्मूला. दैट इज ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर. ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. तो साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लो, तो इट विल बिकम ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. सो इट इज रिटन इन दिस वे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर मींस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर, बिकॉज ए डॉट बी इज ए स्क्वायर, सॉरी ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा. सो लैग्रेंजेस आइडेंटिटी विच इज वेरी यूजफुल. जब भी आपको ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर दिखेगा तो उसको इसके थ्रू लिखकर हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं क्वेश्चन में. राइट, क्वेश्चंस हम जैसे मैंने आपको बोला हम करने वाले, एक बार क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं. जो जो हमारे मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो आपको पता होने चाहिए. ठीक है, जेईई के हिसाब से मेंस में कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के बारे में कभी ना कभी कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही गया है. तो ये सब चीज़ें एक क्विक रिवीजन, जैसे आप जानते हैं क्रैश कोर्स है, तो रिवीजन अगर हमें करना है तो सबसे बढ़िया है आप ये लेक्चर देखिए. आपको मैंने जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं वो मैंने सब आपको एक बार लिख ही दी है. तो नेक्स्ट वील कम टू प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्रॉस बी. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्रॉस बी, अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, ए क्रॉस बी जीरो है, इसका मतलब या तो ए वेक्टर जीरो होगा या
बी वेक्टर जीरो होगा बिकॉज ए बी साइन थीटा एन कैप जीरो। अब या तो ये जीरो होगा, मैग्नीट्यूड ए नल वेक्टर होगा, या बी का मैग्नीट्यूड जीरो होगा, या साइन थीटा जीरो। साइन थीटा जीरो तब होगा जब थीटा या तो जीरो हो या पाई हो, थीटा जीरो हो या पाई हो। तो इसका मतलब तीन चीजें हो सकती है, या तो ए वेक्टर जीरो या बी वेक्टर नल वेक्टर, या ए और बी पैरेलल हो जाए, कोलिनियर हो जाए, लाइक अनलाइक दोनों हो सकते हैं। तो उस केस में साइन थीटा जीरो हो जाएगा। ठीक है। सेकंड, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का जो वैल्यू है वो सिर्फ साइन में चेंज होता है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जो है यूनिट वेक्टर विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ए क्रॉस बी जैसे अप है, बी क्रॉस ए विल बी इन द डाउन डायरेक्शन। सो दे चेंजेस इन साइन ओनली। ए क्रॉस बी इज माइनस बी क्रॉस ए। तो क्रॉस प्रोडक्ट में पोजीशन चेंज करते टाइम ध्यान रखिए, डॉट प्रोडक्ट में तो कुछ नहीं होता, वो तो स्केलर क्वांटिटी होती है। ए क्रॉस बी प्लस माइनस ए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ए क्रॉस बी प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ए क्रॉस सी। बस ध्यान रखेंगे ए जो क्रॉस है वो पहले है, तो यहाँ भी बी से पहले और सी से पहले ए आना चाहिए। बाद में लिख देंगे तो मैंने बताया साइन जो है वो उल्टे पुल्टे चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट फोर्थ वन, ए क्रॉस बी क्रॉस ई इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यू कैन नॉट do like this कि you have associated B and C first and here you have associated A and B first cross product करने के लिए, and then you are saying both are equal. It's not like that. Both are different vector quantities. They are different they are perpendicular to different vectors and they are in different planes. They are not equal. Clear? Okay. Now what is the general expression of cross product? The general expression of cross product, it can be found जैसे हमने dot product में किया था, we just dot of two vectors a1 b1 a2 b2 and a3 b3. Here it is the value of the determinant. First row is I cap, j cap, k cap. It's a vector quantity, and then a1 a2 a3. First is a vector, then a1 a2 a3 and b vector cap b1 b2 b3. Now you find the value of this determinant. जो भी इसका I hope you know how to expand the determinant. तो जो भी इसकी value आएगी will be the cross product of the two given vectors. Okay. The next comes the area of triangle. I have written the area of triangle in two different forms depending on what thing has been given in a question. If the position vectors of the vertices are given, triangle के A, B, C points के position vectors given है, then the area of triangle can be written as half of A cross B plus B cross C plus C cross A. Cyclic order में चलते जाओ, A cross B plus B cross C plus C cross A का magnitude will be the area of this triangle. And if any two adjacent side vectors are given, side vectors, this vector is A vector and this side is B vector, then the area of triangle will be half of magnitude A cross B. Clear? Then there are two important formulas. वैसे हो सकता है 3D में भी आपको बताएं, but still because we have studied about the equation of lines in the vectors, so you should be knowing that the distance of a point from a line, एक point है A point with the position vector A vector and a line is given, R is equals to B plus lambda P. Now what this line was, क्या रिप्रेजेंट करता था? लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट बी, मतलब विच का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर एंड इट इज पैरेलल टू पी वेक्टर. सो दिस इज द लाइन. सो द डिस्टेंस मींस पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस. जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला, इट इज a माइनस b का क्रॉस विद p वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर. बेसिकली इट इज, अगर ये लेंथ मान लीजिए, ये वाली लेंथ मान लीजिए x है, तो द लेंथ विल बी x साइन थीटा. तो साइन थीटा था क्रॉस से, तो क्रॉस के लिए मैंने a माइनस b वेक्टर का क्रॉस p से किया, तो इट विल बी a minus b into p into sin theta, and we need this length का sin component. तो this length का sin component ही आएगा, उसके लिए magnitude of p से divide कर दिया. Remember the formula, a minus b cross p upon magnitude of p. And similarly, the shortest distance between two skew lines, lines which are in different plane. Now shortest distance is the distance which is perpendicular to both the lines, which is perpendicular to L1 and L2 both. So L1 was parallel to p vector, L2 was parallel to q vector. So direction of a vector which is perpendicular to line 1 and line 2 both, line 1 line 2 दोनों के perpendicular आएगा p और q के क्रॉस प्रोडक्ट से. एक वेक्टर p वेक्टर है, q वेक्टर है. p क्रॉस q is a vector which is perpendicular to both p and q. So उससे डायरेक्शन मिल जाती है हमें लाइन 1 और लाइन 2 के दोनों के परपेंडिकुलर जो एक वेक्टर है उससे. So the distance becomes A is a point on line 1, B is a point on line 2, A minus B dot P cross Q upon magnitude of P cross Q. ध्यान रखिए, यहाँ डॉट है, यहाँ क्रॉस है. These formulas you should always keep in your mind. So these are some of the formulas and the theory related with the cross product. Now I will tell you some of the theory of the vector, basically triple product. Now triple product means scalar triple product of three vectors.
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। सो उसकी थ्योरी भी रिवाइज करते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल डू सम इलस्ट्रेशंस। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स पे, प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स पे, जिसमें से फर्स्ट है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, या जिसको हम बोलते हैं बॉक्स प्रोडक्ट। नाउ व्हाट इज अ बॉक्स प्रोडक्ट? दैट इज a क्रॉस b डॉट c, दो वेक्टर्स का क्रॉस डॉट विद द थर्ड वेक्टर, इट्स वैल्यू इज a b c sin थीटा cos फाई। थीटा cos थीटा और फाई क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b and phi is the angle between a vector which is perpendicular to a and b, basically a cross b जो n वेक्टर आता था और जो थर्ड वेक्टर c वेक्टर है उसके बीच का एंगल है। तो इसको ज्योमेट्रिकली अगर इंटरप्रेट करना है तो कैसे करना है? देखिए, दिस डायग्राम, दिस इज कॉल्ड अ पैरेललोपाइड। पैरेललोपाइड मतलब पैरेललोग्राम प्रोजेक्ट कर दिया। इसी से इसका स्पेशल जो होता है फिगर होता है, क्यूबॉइड होता है, क्यूब होता है, राइट? तो दिस इज अ पैरेललोपाइड जिसकी थ्री को टर्मिनल एजेस या को इनिशियल एजेस ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है। को टर्मिनल या को इनिशियल मतलब जो सेम पॉइंट से ओरिजिनेट होती है, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। सो ए और बी के बीच का एंगल थीटा है। तो जब हमने ए क्रॉस बी किया, व्हाट डज ए क्रॉस बी डिनोट्स? इट डिनोट्स ए बी साइन थीटा, एंड ए बी साइन थीटा इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ बेस ए क्रॉस बी से एन वेक्टर आ गया इनटू सी और एन का डॉट, सी और एन का डॉट मतलब सी कॉस फाई आ गया हमारे पास। तो सी कॉस फाई मतलब इसका प्रोजेक्शन, वर्टिकल कंपोनेंट। तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, वर्टिकल प्रोजेक्शन विल बी द हाइट। इट विल बी गिविंग यू द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, volume of parallelopiped, and it is represented as box product. This is called scalar triple product या box product because हम उसको एक बॉक्स में a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर से डिनोट करते हैं। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, राइट? सो इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड whose three co-terminus edges. Now you can see phi is the angle between c and n, and theta was the angle between a and b. Clear? अच्छा, now we come to some properties of this. देखिए, अगर c वेक्टर a और b के प्लेन में आ जाए, ये c वेक्टर a और b के प्लेन में आ गया तो ये फाई एंगल बेटा 90 हो जाएगा। फाई अगर एंगल 90 हो जाएगा तो cos 90 0 हो जाएगा, तो बॉक्स 0 हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन है बॉक्स ABC के 0 होने की, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन टू चेक दैट वेदर द थ्री प्लेन्स आर इन अ थ्री वेक्टर्स आर इन अ प्लेन और नॉट। अगर तीन वेक्टर्स एक ही प्लेन में है, मैंने बोला था दो वेक्टर्स तो हमेशा ही एक प्लेन में होते हैं, बट थ्री वेक्टर्स आर इन अ प्लेन और नॉट, कैसे चेक होगा? by checking their box product. If the value of box product of three given vectors is 0, that means all those three vectors lie in the same plane. Clear? Or they are also called linearly dependent vectors. If three vectors are in the same plane, then one vector can be expressed linearly in terms of the other two. C vector को हम xa vector plus yb vector की फॉर्म में लिख सकते हैं. That I will tell you also. Now, the general expression of scalar triple product, three vectors ABC are given, so their box is determinant, value of determinant formed by their coefficients a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3. So it will be a scalar quantity. The value of determinant will give you the value of the box product ABC. The next thing, again a very important property, if you change the vectors ABC in cyclic order, A वेक्टर की जगह B और B की जगह C और C की जगह A आपने डाला, A की जगह B, B की जगह C, C की जगह A, साइक्लिक ऑर्डर में, the value of box product doesn't changes. It's basically a property of determinant that we are doing two row transformations. हम दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। हमने रो 1 रो 2 को इंटरचेंज किया तो माइनस साइन से चेंज हुआ, फिर हमने रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज किया तो एक माइनस साइन से और चेंज हो गया, तो बेसिकली वही वैल्यू दोबारा आ जाती है। तो अगर हम इसके अंदर पोजीशन साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करते हैं तो वैल्यू ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट डजंट चेंजेस, राइट? अगर बॉक्स के अंदर कोई भी दो वेक्टर सेम हो गए, जैसे ए बी बी, एनी टू वेक्टर सेम, दैट मींस दो रोज डिटरमिनेंट की सेम होंगी या दो कॉलम भी सेम होंगे, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज ऑलवेज 0. द फिफ्थ प्रॉपर्टी, द पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज. ए क्रॉस बी डॉट सी लिखना या ए डॉट बी क्रॉस सी लिखना एक ही चीज होती है, डजंट मैटर. एंड द सिक्स्थ वन, इंपॉर्टेंट अगेन, box value of a plus b, b plus c and c plus a is always equals to 2 times box abc. वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली बहुत बार क्वेश्चंस में यूज हो जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऑप्शंस के अंदर कहीं ना कहीं इसका यूज कर लेते हैं, कई बार यहाँ लैम्डा लिख देते हैं, तो ये याद रहना चाहिए, a plus b, b plus c, c plus a का बॉक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 2 times box abc. नेक्स्ट सेवेंथ प्रॉपर्टी, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. देखिए अब इसमें क्या हो रहा है कि लेट से जो a b c वेक्टर्स हैं वो
किसी आई कैप जे कैप के कैप की बजाय किसी और 3 वेक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रखा है, वो है LMN. A is A1L, A2M and A3N cap n vector, B is B1L vector, B2M vector and B3N vector and similarly C vector. और LMN खुद आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में थे, ठीक है ना. आई हैव रिटन एवरीथिंग देयर. A, B, C are written in terms of LMN and LMN are in terms of I cap, J cap, K cap. Then if you have to find the box of ABC, so the formula says the box of ABC will be the determinant formed by the coefficients of LMN A1, A2, A3, B1, B2, A3, वो तो same ऐसे ही हो गया, into box of LMN, into box of LMN, है ना. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है. नेक्स्ट आगे की क्या प्रॉपर्टीज हैं देखते हैं. बच्चों, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस, हम जो उसमें आपको पढ़ा रहे हैं, वो पसंद आए तो आप उन वीडियोस को ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि वो वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके और वो सब भी उन वीडियोस से अपने आप का फ़ायदा जो है वो ले सकें. आप लोगों का ढेर सारा स्नेह और प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम जो है वो बहुत मोटिवेटेड है और हम उतने ही मोटिवेशन से आपके बेहतरमंद के लिए बहुत ही अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके. Okay, now next property number 8 is let 3 vectors ABC are represented in terms of I cap, J cap and K cap in such a way, then box ABC का whole square को determinant form में कैसे लिखना है. Box ABC whole square can be written in determinant form as A dot A into A dot B, A dot C, B dot A, B dot B, B dot C, C dot A, C dot B, C dot C, है ना. अगेन वेरी यूजफुल फॉर्मूला. बॉक्स ABC का होल स्क्वायर अगर हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ABC हमें पता है, डॉट प्रोडक्ट हम निकाल ही लेंगे. A डॉट A मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर, A डॉट B निकाल लेंगे, A डॉट C निकाल लेंगे. इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो हमें बॉक्स ABC का होल स्क्वायर पता चल जाएगा और फिर उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो यू विल ऑल्सो गेट टू नो द वैल्यू ऑफ बॉक्स ABC. क्लियर. तो ये फॉर्मूला भी एक हमें याद रखना है. और उसके अलावा वन मोर थिंग इज वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रन, जिसका लेट से एक वर्टेक्स ओरिजिन है और बाकी 3 वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर्स ABC हैं. बेसिकली मुझे 3 एजेस जो हैं, 3 टर्मिनल एजेस, वो वेक्टर्स पता है. दिस इज A वेक्टर, दिस इज B वेक्टर एंड दिस इज C वेक्टर. सो द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इज 1/6 बॉक्स ABC. बॉक्स ABC was the volume of parallelopiped जिसकी 3 adjacent sides जो थी वो A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर थी और जिसकी 3 adjacent sides A, B, C वेक्टर है टेट्राहेड्रन, तो उसका वॉल्यूम 1/6 बॉक्स ABC के बराबर होता है. ये फॉर्मूला याद रखना है, राइट. The next thing that we come is vector triple product. Vector triple product, that is cross product of 3 vectors. तो A क्रॉस B क्रॉस C, मैंने इधर A और B को जो है एक साथ एसोसिएट किया है. फॉर्मूला ऐसे याद रखेंगे, पहले A डॉट C होगा, C का डॉट होगा जो उससे दूर वेक्टर क्रॉस हो रहा है, ब्रैकेट में जो दूर वाला है, तो A डॉट C इंटू B माइनस B डॉट C इंटू A, A डॉट C इंटू B वेक्टर माइनस B डॉट C इंटू A वेक्टर. नाउ दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो दैट्स व्हाई we say that it's a vector triple product. What does this represents? इट रिप्रेजेंट्स, हमने पहले A और B वेक्टर्स हैं उनका क्रॉस किया तो A और B के परपेंडिकुलर आ गया. अब कोई तीसरा वेक्टर C था तो हमने वो जो परपेंडिकुलर वेक्टर का C से क्रॉस किया, तो जो नया वेक्टर आएगा वो C के परपेंडिकुलर और A और B के प्लेन में चला जाएगा. तो दिस इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू C एंड इट लाइज इन द प्लेन ऑफ A एंड B. ऐसी अगर मैं आपसे A क्रॉस मान लीजिए B क्रॉस C पहले करता हूं तो बेटा ये डिफरेंट वेक्टर होगा. दिस इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू A एंड लाइज इन द प्लेन ऑफ B एंड C. ठीक है भाई, ये याद रखना है आपको. अच्छा, उसके बाद अगर ABC नॉन कोप्लेनर है, मतलब उनका बॉक्स 0 नहीं है, तो A प्लस बी, B प्लस C और C प्लस A भी नॉन कोप्लेनर होंगे. अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, बॉक्स ऑफ A प्लस बी, B प्लस C, C प्लस A इज ट्वाइस ऑफ बॉक्स ABC. तो यार अगर ABC का ही बॉक्स 0 नहीं है तो इन तीनों का भी बॉक्स 0 नहीं होगा. पर A माइनस बी, B माइनस C, C माइनस A हमेशा कोप्लेनर आएंगे या इनका बॉक्स हमेशा 0 होगा. ये आप याद रख सकते हैं. टाइम बच जाएगा अगर इनका बॉक्स या इसका बॉक्स पूछा, इसका बॉक्स पूछेंगे इन तीनों का तो वो 2 टाइम्स बॉक्स ABC, और A माइनस बी, B माइनस C, C माइनस A का बॉक्स पूछेंगे तो 0 ही आएगा. क्लियर. वन मोर प्रॉपर्टी, बॉक्स ऑफ A क्रॉस B, B क्रॉस C एंड C क्रॉस A इज इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ ABC का होल स्क्वायर. एक बॉक्स ABC का होल स्क्वायर डिटरमिनेंट फॉर्म में, एक बॉक्स ABC का होल स्क्वायर बॉक्स फॉर्म में इज A क्रॉस B, B क्रॉस C एंड C क्रॉस A का बॉक्स प्रोडक्ट. ठीक है, ये भी कई बार ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली पूछा गया है.
उसके बाद जो लास्ट चीज आती है दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन थ्योरम ऑफ वेक्टर्स इन स्पेस। इसमें क्या होता है, इसमें 3 वेक्टर्स हैं ABC जो कि नॉन जीरो और नॉन कोप्लेनर है। द 3 वेक्टर्स आर नॉन जीरो एंड नॉन कोप्लेनर। देन एनी वेक्टर आर इन स्पेस 3D में, जैसे आई कैप जे कैप के कैप ले लीजिए, आई कैप जे कैप के कैप आर 3 नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। तो हम दुनिया में किसी भी वेक्टर को आई कैप जे कैप के कैप के नाम से लिख सकते हैं। वैसे ही अगर ABC आर 3 नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, देन एनी वेक्टर आर इन स्पेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दोस 3 वेक्टर्स इन दिस फॉर्म। आर वेक्टर इज XA plus YB plus ZC where X, Y, Z are some scalar quantities, जिसकी वैल्यू हम गिवन क्वेश्चन में अकॉर्डिंगली जो डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। So this is how any vector in space can be expressed in terms of 3 non-zero non-coplanar vectors. क्लियर है, नॉन कोप्लेनर होना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। जिनकी टर्म्स में हम R को एक्सप्रेस कर रहे हैं वो तीनों नॉन कोप्लेनर होने जरूरी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरेटिकल पार्ट जो मेंस में मैक्सिमम आपके कवर कर जाएगा और इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, जो आज हमने पढ़ा कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम उसके स्टार्ट करते हैं और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जो पास्ट ईयर जेई के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वेक्टर्स में वो हम कवर करेंगे। ओके, चलिए बेटा, अब हम जो हमने थोड़ी थ्योरी पढ़ी पहले उसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड अ वेक्टर R विच satisfying the given 2 equations. First one is R cross B equals to C cross B and R dot A equals to 0. A, B and C vectors have been given to you. A vector, B vector and C vector has been given to you. So one of the ways of solving this question can be, you can assume the vector R as xi cap plus yj cap plus zk cap. Then what you can do, you can cross it with B. Then C cross B, C and B पता है, this is a known vector. This you can find. जो हमने फॉर्मूला पढ़ा डिटरमिनेंट आई जे के करके कंपेयर करेंगे। एक्स वाई में एक इक्वेशन, एक आर का डॉट ए से करेंगे 2 इक्वेशन एंड देन यू कैन प्रोसीड एंड सॉल्व। द अदर वे कैन बी, इफ यू लुक एट द इक्वेशन 1 प्रॉपरली, cross B, that is R cross B minus C cross B is a null vector. Now using the distributive property cross की, I can write it as R minus C cross B is equals to 0. क्रॉस ले लूंगा तो R cross B minus C cross B equals to 0 आएगा। Now दो वेक्टर्स का क्रॉस 0 है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 मतलब R minus C is parallel to B vector. R minus C B vector के पैरेलल होगा and when two vectors are parallel, one can be written as a linear combination या they are linearly dependent, एक को हम दूसरी की टर्म्स में लिख सकते हैं, हमने देखा था। तो R minus C becomes lambda times B vector और R becomes C plus lambda times B vector. Well and good, you know the vector C, that is 4 comma minus 3 comma 7 plus lambda times of B vector which is 1 comma 1 comma 1. So it can be written as 4 plus lambda minus 3 plus lambda comma 7 plus lambda. Clear? This is R vector. Then you have been given that the dot of R with A is 0. तो अब हम ये कंसेप्ट लगा देते हैं, ये फॉर्मूला कर लेते हैं। R का डॉट A से करते हैं, तो R का डॉट A से करेंगे तो 4 plus lambda into 2 that is 8 plus 2 lambda. 0 into this 0 and 1 into this plus 7 plus lambda is equals to 0. So you get 3 lambda is equals to minus 15 or lambda is equals to minus 5. And as we get the value of lambda minus 5, हमें directly R vector मिल जाएगा। minus 5 रखोगे it will be minus I cap, minus 8 J cap and 2 K cap. This is what the vector R will be. So अगर हम ध्यान से सोच के करें तो कई बार हम स्टेप्स में अपनी कैलकुलेशन बचा सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट करके करते बहुत लेंदी होता। विद द प्रॉपर्टी वी हैव ऑब्जर्व्ड इट। देखना क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना भी बहुत जरूरी है कि हम क्या सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो फिर तो जो बेसिक तरीका है वो करना ही है। क्लियर? सो दिस इज द solution of the first question. Now next question, question number 2. Okay, now this is a very beautiful and a very good question. ये क्वेश्चन अगर बेटा एकदम से आता है हमारे सामने कहीं पर तो ये क्लिक करना कि यार ये वेक्टर्स के थ्रू होगा थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा मतलब आई थिंक पर्सनली काफी मुश्किल ये जो है हो सकता है, राइट। अच्छा, अब इसको कैसे हम सोचेंगे वो हम देखते हैं। देखिए 2 sin x sin y plus 3 cos y plus 6 cos x sin y 7 एक ही इक्वेशन है और 2 वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल 2 हैं x और y।
एक इक्वेशन से दो वेरिएबल और कुछ वैल्यू पूछ ली, तो मतलब कहीं ना कहीं बाउंड्री कंडीशन या कुछ ना कुछ लगना चाहिए। अच्छा, कोफिशिएंट्स 2, 3 और 6 देखें। 6 का स्क्वायर 36 और 9 45 एंड 4 49। 49 का अंडर रूट 7 आएगा। तो हमें दिख रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट 7 है। तो क्यों ना सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं एक v1 वेक्टर एज्यूम करता हूं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, जहां पर मुझे दिख रहा है v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है भाई, 7 है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और एक मैं दूसरा वेक्टर v2 एज्यूम करता हूं, जिसमें बचा हुआ जो है वो लिख लेता हूं, साइन x साइन y आई कैप, ठीक है, साइन x साइन y आई कैप प्लस कॉस y j कैप प्लस cos x sin y k cap. Okay, I have assumed another vector like this. Now, if I ask you to calculate the magnitude of v2 vector, so it will be root over sin square x sin square y plus cos square y plus cos square x sin square y. Now what you do, you combine these two terms first. इनमें से आपने sin square y कॉमन लिया, तो sin square y कॉमन लिया तो sin square x plus cos square x 1 हो जाएगा, तो it will become sin square y plus cos square y, which is nothing but 1. So you can see that v1 vector dot v2 vector is what? v1 vector dot v2 vector जब आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, so you will be getting 2 sin x sin y plus 3 cos y plus 7 cos x sin y, and its formula is magnitude of v1 into magnitude of v2 into cos theta. Clear? Magnitude of v1 into magnitude of v2 into cos theta, and the value of this is given to be 7. So this whole thing gets cancelled by 7 and you get the value of cos theta as 1. Cos theta 1 मतलब theta comes out to be 0 degree, and if theta comes out to be 0 degree, this implies v1 is parallel to v2 vector. And if v1 and v2 vector are parallel, then their coefficients must be in proportion. Parallel हैं, दोनों parallel vectors हैं, तो coefficients proportion में होंगे, parallel की condition. तो sin x sin y upon 2 sin x sin y upon 2 equals to cos y upon 3 is equals to cos x sin y upon 7. ये इक्वल हो जाएंगे. Now what you can do, let's say पहले और इसको इक्वेट कर दो, तो sin y कट जाएगा, तो उससे आपके पास tan x की वैल्यू आ जाएगी बेटा. What is the value of tan x? इन दोनों को इक्वेट करने से the value of tan x comes out to be 2/7. क्लियर है? और अगर tan x की वैल्यू अगर हमारे पास आ गई, so can we get the value of tan y? You can get the value of tan y also. tan x पता है तो sin x पता है, तो यहाँ से tan y, इन दोनों को इक्वेट करने से tan y की वैल्यू भी आ जाएगी. जैसे ही tan x tan y की वैल्यू आ गई, you can put the values of tan x and tan y here to get the value of tan square x plus tan square y. I will tell you the answer. What is the answer for this? If you want, you can note it down. The answer for this question is 9. Clear? The value of and it was 6 here, 6, right? That is basically 6 था बेटा, sorry है ना. So magnitude of v1 36 is 36 and 9 and 4. So this one this, it's okay. So it will be 6 cos x and sin y here. So this will be 6 here बेटा है ना. So इन दोनों को इक्वेट करने से you'll get tan x as 2/6, which is 1/3 है ना. और tan x की वैल्यू रखने से the value of tan y that you will get is 2/3 into root 10. ठीक है, tan y की वैल्यू 2/3 root 10. 2/3 root 10. ठीक है. Now you can get the value of tan square x plus 2 tan square y. So it's a very good question. Basically click क्या करना है वो मैंने आपको बताया. ये मैं लिखने में थोड़ा गलत कर दिया. 7 नहीं या 6 था ना, तो 6k कैप. मैग्नीट्यूड वाइज तो हम बाउंड्री बेसिकली इनके कोफिशिएंट से चेक कर रहे हैं मैग्नीट्यूड वाइज कि वो 7 कब बन रहा है. क्लियर? चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड वन. E1 and E2 are two vectors such that magnitude of E1 is 2, magnitude of E2 is 1. दोनों के पीछे एंगल π/3.
और अगर V1 और V2 के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज है तो T की रेंज क्या होगी? V1 और V2 के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज है, सो व्हाट इज द रेंज ऑफ T? अच्छा, अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल ऑब्ट्यूज है तो हम प्रोसीड किससे करेंगे बेटा? हम करते हैं डॉट प्रोडक्ट से, और cos थीटा जो है वो नेगेटिव हमें करना है। क्लियर? दैट मींस V1 dot V2, that is magnitude of E1 magnitude of V2 cos theta. So the value of cos theta from here, that is V1 dot V2 upon any positive quantity. Why magnitude of V1 magnitude of V2 will be a positive quantity, should be less than 0. This is what we have to apply the condition. Now V1 dot V2, when you will do V1 dot V2, what you will get? That is 2T E1 plus 7E2 का डॉट प्रोडक्ट हमें करना है E1 plus T E2 के साथ. So this will become 2T E1 square plus 7 E1 dot E2 plus 2T square E1 dot E2 plus 7T mod of E2 square less than 0. Just let us check this dot this 2T E1 square 7 E1 E2 2T square E1 E2 2T square E1 E2 and 7T E2 square less than 0. Now what is magnitude of E1 square? It is 4. So this becomes magnitude of E1 is 2, so its square 4 हो जाएगा. It becomes 8T and E1 dot E2. What is E1 dot E2? E1 dot E2 is magnitude of E1 into magnitude of E2 to cos pi by 3. Cos pi by 3 is 1 by 2. So E1 dot E2 comes out to be 1. So this is plus 7 plus 2T square. E1 dot E2 is 1 and 7T E2 square is 1 is less than 0. So you get a quadratic 2T square and 7 and 8 15T plus 7 should be less than 0. Factors 2T square plus 14T plus T plus 7 less than 0. 2T plus 1 into T plus 7 less than 0. If you solve the inequality, get T की वैल्यू -7 से -1 by 2. क्लियर? और मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पर छोड़कर जो है आ जाते हैं, बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. क्या गलत है? आई होप आपको क्लिक किया होगा. जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल ऑब्ट्यूज होता है, डॉट प्रोडक्ट 0 एंड देयर इज वन मोर कंडीशन. व्हाट कंडीशन? दैट थीटा शुड नॉट बी पाई. थीटा शुड नॉट बी पाई, क्योंकि V1 डॉट V2 तो उसमें भी 0 आ जाता है. दैट मीन्स यू कैन से दैट cos थीटा पाई तो ये -1 के बराबर हो जाएगी वैल्यू. क्लियर? और अगर ये वाली वैल्यू -1 के बराबर हो गई, सो यू हैव टू एंश्योर दैट these two vectors are not parallel. V1 is not equals to lambda V2. V1 should not be equals to lambda V2. तो कोफिशिएंट्स अगर प्रोपोर्शन में करें V1 और V2 के, E1 E2 have, that is 2T upon 1 should not be equals to 7 upon T. और T square should not be equals to 7 by 2. T should not be equals to plus minus under root 7 by 2. तो बेटा -7 से -1 by 2 के बीच में -√7 by 2 आ रहा है इंटरवल में, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो एंगल ऑब्ट्यूज नहीं कहलाता है, पाई एंगल ऑब्ट्यूज नहीं कहलाता है. सो योर फाइनल आंसर विल बी T belongs to -7 to -1 by 2 except one value which is under root minus of under root 7 by 2. This will be your final answer. Clear? So again, this is also a very good question, because if you forget this condition, you will not be getting your final answer correctly. जरा सी भी गलत होगी तो बेटा गलत हो जाएगा. क्लियर है? चलिए बेटा कुछ क्वेश्चंस और करते हैं अब हम सॉल्व. The next question, question number 4. You have been given the value of box of three vectors ABC is 8, and you have to find the value of box of 2a minus 3b minus 4c, a plus 4b minus 3c vector, 5a minus b plus 2c. तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? देखो, जो मैं बता रहा हूँ वैसे नहीं करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा ये क्वेश्चन. मैं मान लेता हूँ कि ये जो वेक्टर है एक u वेक्टर है, ये v वेक्टर है और ये w वेक्टर है. तो बेसिकली हमें इसमें क्या करना है? यू हैव टू फाइंड द बॉक्स ऑफ u v w.
अच्छा, अभी मैंने आपको नोट्स जो प्रॉपर्टीज लिखवाए थे उसमें एक चीज बताई थी कि UVW आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ABC. तो box of UVW will be equals to the value of determinant formed by the coefficients of ABC, that is 2 minus 3 minus 4, 1 4 minus 3 and 5 minus 1 2 into box of ABC. Clear? When a vectors are expressed in terms of L, M and N, and then you have to find the box of that vectors. So either the vector U is they're expressed in terms of ABC, V and W they are expressed in terms of ABC. तो अब ये सॉल्व करना तो बहुत आसान है, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो इनटू 8 और कर दो, तो आप करके देखिएगा, योर आंसर विल कम आउट टू बी 1160. ठीक है ना, मैं सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ. दैट यू कैन डू, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इनटू बॉक्स ऑफ ABC इज गिवन 8, मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनल आंसर इज 1160. कंसेप्ट सीखने की कोशिश करो बेटा, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए जहां हमें नया बॉक्स निकालना है इन टर्म्स ऑफ द गिवन वेक्टर्स, ऑलवेज गो बाय दैट प्रॉपर्टी. क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन 5? यू हैव बीन गिवन 4 पॉइंट्स एंड द क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, जिसके लिए 4 पॉइंट्स क्या है, फॉर विच द 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर. क्वेश्चन लिखा मैंने आर कोप्लेनर. अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोप्लेनर? कोप्लेनर मतलब चारों पॉइंट्स एक ही प्लेन में हैं. ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट. तो 4 पॉइंट्स एक प्लेन में कैसे करेंगे बेटा? आप एक काम कर सकते हो, आप इन 4 पॉइंट से कोई से 3 वेक्टर निकाल लो. जैसे मैंने ऐसे बना लिया, एनी 3 वेक्टर्स. 4 पॉइंट एक ही प्लेन में, तो इन 4 पॉइंट से बनने वाले ये 3 वेक्टर्स भी उसी प्लेन में होंगे. इसका मतलब बॉक्स ऑफ AB वेक्टर, AC वेक्टर और AD वेक्टर, कोप्लेनरिटी के लिए इनका बॉक्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. बॉक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट. व्हाट इज AB वेक्टर? AB वेक्टर माइनस माइनस 2. ठीक है, मैं लिखता जा रहा हूं बेटा यहाँ से, दिस 3 minus 0 is 3, 4 minus 3 is 1. AC वेक्टर 1 minus 1 is 0, 2 minus 0 is 2 and 1 minus 3 is minus 2. And AD lambda minus 1, 2 minus 0 is 2 and 5 minus 3 is 2. The value of this determinant should be 0. बस अब आपको एक्सपैंड करके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है. कंफ्यूजन में आया? इनसे बनने वाले कोई भी हो सकते थे, वो जैसे AB BC भी ले सकते थे, BD भी ले सकते थे, तो कोई भी 3 वेक्टर इन 4 पॉइंट से बनने वाले एनी 3 वेक्टर्स का बॉक्स 0 कर दो, तो वो चारों पॉइंट्स भी इसी प्लेन में होंगे. ठीक है, व्हेन यू सॉल्व यू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एज -1. क्लियर? दैट यू कैन डू. सो दिस वाज द concept for question number 5. Now let us move on to our next question, question number 6. It is based on vector triple product. In the question it is given that if A cap cross B cap cross C cap, 3 यूनिट वेक्टर्स हैं, इनका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू B cap by 2 के बराबर है, जहां B and C are non collinear. Just highlight the important things which are mentioned in the question. B and C are non collinear, मतलब they are not parallel. That means B and C can't be expressed in terms of each other. So you have to find the angle between the vectors A and B and A and C. हमें AB और A और C vectors के बीच में angle क्या है, that we have to find. Okay, what we'll do, we will be starting by applying the formula of vector triple product. That is A cap cross B cap cross C cap. तो A का डॉट पहले होगा दूर वाले के साथ into B cap minus A dot B, A cap dot B cap into C cap, and this is equals to what? This is equals to B cap by 2. Now clearly it is written that B cap and C cap are non-collinear. B and C, this one and this one are non-collinear. तो बेटा अगर ये non-collinear है, basically it's written in this x plus yc is equals to 0. तो देखो अगर x और y 0 नहीं हुए, ये स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, अगर x और y 0 नहीं हुए तो आप b को c की टर्म्स में लिख दोगे, सब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ c, और ऐसा लिखने का मतलब तो कोलिनियर होता है. तो बेटा ये तभी होगा जब b कैप का कोफिशिएंट इसके बराबर होगा, दैट इज a कैप डॉट c कैप इज 1/2 एंड c कैप का कोफिशिएंट, यहाँ c कैप का कोफिशिएंट 0 है, दैट इज a डॉट b शुड बी 0. सो you have to find the angle between A and B. These are unit vectors. इसका मतलब A और B का एंगल थीटा तो हो गया 90 डिग्री, तभी उनका डॉट 0 होगा. और यहाँ से it will be magnitude of A into magnitude of C into cos phi is equals to 1/2. That means phi comes out to be
60 डिग्री। तो A और C के बीच का एंगल तो 60 डिग्री हो गया और A और B के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। तो इसमें जो नॉन कोलिनियरिटी वाली चीज है वो बहुत जरूरी है कि हम X को और Y को दोनों को 0 करके आगे प्रोसीड करें। क्लियर है? सो दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कि हमने कैसे फॉर्मूला लगाया और आगे फिर कंसेप्ट यूज करें। ओके, we'll see one more question. This is based on the vector theorem in space. The question is given vectors A and B are orthogonal. हमें given है A and B vectors are orthogonal. Then you have to find a vector V in terms of A and B which satisfies the three given conditions. That is V dot A is 0, V dot B is 1 and box of V A B is also 1. So देखिए हम V को A और B की टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो हमने ये देखा था कि हम किसी भी वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स इन स्पेस लिख सकते हैं। तो A और B तो हमें दो वेक्टर्स तो दे रखे हैं, तो बेटा जब भी दो वेक्टर दे रखे हो और तीसरा वेक्टर निकालना हो तो वो होगा बेटा A क्रॉस B, A B एंड A क्रॉस B। A क्रॉस B हमेशा A और B के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा तो कोप्लेनर कभी नहीं होंगे। तो हम V को लिख सकते हैं XA प्लस YB प्लस Z टाइम्स ऑफ A क्रॉस B। समझ में आ गया? अब मैं गिवन कंडीशंस का यूज करूंगा। कैसे यूज करूंगा भाई? तो कैसे यूज करूंगा, मुझे XYZ की वैल्यूज चाहिए तो उसके लिए जैसे मुझे V डॉट A 0 दे रखा है तो मैं इस इक्वेशन नंबर 1 को डॉट करता हूं विद A वेक्टर। तो जैसे आप A वेक्टर से डॉट करोगे लेफ्ट हैंड साइड विल बी V डॉट A x टाइम्स ऑफ A स्क्वायर। A डॉट A इज A स्क्वायर, ठीक है, प्लस Y टाइम्स A डॉट B प्लस Z टाइम्स A क्रॉस B dot A. Now question is saying that A and B are orthogonal. A and B are orthogonal. A and B orthogonal का क्या मतलब है भाई? A dot B will be 0. अच्छा, A cross B is definitely perpendicular to A vector. A cross B is perpendicular to A, तो A cross B का dot with A भी कितना हो जाएगा? 0. So from here we will be able to get the value of X. The value of V dot A is 0, so the value of X comes out to be 0. बहुत अच्छा। Second, now dot it with B vector. Okay, if you dot it with B vector, you will get V dot B is equals to, I'm doing it directly now. A x तो वैसे 0 हो गया, इसका तो काम खत्म हो गया। It will become Y B dot B, that is Y of B square plus Z times A cross B dot with B. So it is again 0. So the value of Y comes out to be, what is the value of V dot B? The value of V dot B is 1. So it comes out to be 1 upon B square. And in the third step, we will be doing the dot product with the third vector which is A cross B. जैसे आपने A cross B से dot किया, this becomes V dot A cross B, or you can say it is box of VAB is equals to, अच्छा A x तो 0 था ही, Y B dot A cross B भाई 0 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि B and A cross B are perpendicular, and it will be plus Z times A cross B का whole square. Now box of VAB क्वेश्चन में again 1 दे रखा है, this is 1, this becomes 0, so the value of Z comes out to be 1 upon magnitude of A cross B का whole square. So we are able to find all the three values x, y and z. So finally vector B becomes, because x is 0, y is 1 upon B square B vector plus z is 1 upon magnitude of A cross B ka square into A cross B vector. So this is how vector V will be expressed in terms of A and B vector. So basically जब तीसरा वेक्टर हमें बनाना हो, दो ही अगर तीन दे रखे तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो एक्स ए प्लस वाई बी प्लस एक्स सी, पर अगर दो ही दे रखे तो तीसरे को, मतलब तीसरे के तीन के फॉर्म में लिखना है हमेशा। वी विल ऑलवेज राइट वेक्टर इन स्पेस इन फॉर्म ऑफ थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर। सो थर्ड को हम बना लेंगे ए क्रॉस बी के साथ। क्लियर है? सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द थ्योरी दैट वी हैव स्टडीड। ओके बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए वीडियोस, स्टडी मटेरियल या और भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है वो आप तक पहुँचे, तो आप नंबर 18002121 वापस रिपीट करता हूँ 18002121 पर कॉल करिए। कोई भी क्वेरी है आप इस पे कॉल करिए, आपकी क्वेरी का पूरा समाधान मिलेगा।